बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, फौजिया कसूरी और हम सब की तरफ से जेंडर एम्पावरमेंट सेमिनार में खुश आमदीद। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब से आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। आपको मालूम होगा कि आज की तकरीब खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन के हकूक़, तालीम और सेहत के बारे में है। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से होगा। मैं दावत देती हूँ कारी साकिब मीर साहब को, जो सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद कश्मीर है, तकरीब का आगाज करें। कारी साकिब मीर साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. मैं इस वक्त ऐसी शख्सियत को दावत देती हूँ जो इस वक्त हमारी टीम की अहम रुकन है। पिंडी डिस्ट्रिक्ट वुमेन विंग की एक्स प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। इन्होंने तवील अरसा हल्का पिंडी 55 और 56 में खिदमत अंजाम दी। मैम फराह आगा। मोहतरमा फौजिया कसूरी साहिबा, जेंडर एम्पावरमेंट प्रोग्राम की रूह रवा मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबका इतनी तादाद में और इतनी दूर से इकट्ठे होना इस बात का सबूत है कि हम अपने चेयरमैन इमरान खान का जो मकसद है, जैसे कि शौकत खानम, नमल यूनिवर्सिटी और इस तरह के दूसरे नेक कामों में हमने उनको लब्बैक कहना। मैं एक औरत होने की हैसियत से आप लोगों को थोड़ा सा मुख्तसर बताऊंगी। जो गुज़श्ता इलेक्शन गुजरे हैं उसमें हमारी ख़वातीन ने जो थोड़ा सा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया उसके बारे में, उनकी शमूलियत के बारे में।
میں بس یہ کہوں گی کہ دیکھیں نہ انہوں نے دھوپ دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، اور وہ گھر سے نکل کے آدمیوں پہ شانہ بشانہ کام کرتی رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی مشکل جگہوں پہ ہم لوگوں نے کامیابی حاصل کی. تو ہماری عورتوں کا کافی زیادہ اس میں رول تھا، جس پہ ہم لوگوں کو نا، میرا خیال ہے کہ ہماری واحد پارٹی ہے جس میں خواتین نے اتنے ایکٹیو ہو کے اور الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کیا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری خواتین پی ٹی آئی کی بہت کچھ کر سکتی ہیں. میں خان صاحب سے یہ مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ آگے لوکل باڈی الیکشنز ہو رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ عورتوں کو اس میں بھی آگے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جائے اور ان کا نا بھرپور تعاون بھی کیا جائے. کیونکہ دیکھیں جو لوکل باڈی الیکشنز ہیں یہ ہے ہی، مطلب آپ اس کو دیکھیں کہ یہ گراس لیول کا کام ہے جو کہ گلی محلوں کا ہوتا ہے، اور جو ہماری عورتیں وہاں پہ کام کرتی ہیں آپ یقین مانیں کہ ان کے لیے کوئی آسانیاں نہیں ہوتی. انہیں کتنی قسم کی باتیں سننی پڑتی ہیں، کتنا قسم کا ان کے ساتھ جو کچھ آپ کو پتہ ہی ہے. ایک عورت کا باہر نکلنا اور پھر اس کے اوپر بولنا ہے سیاست میں آ گئی یہ تو ایسی ہوگی ویسی ہوگی، یہ سب کچھ برداشت کر کے ہم لوگ باہر نکلتے ہیں. اور ہماری پارٹی کے بارے میں تو ویسے ہی ہے کہ زیادہ تر ہماری خواتین جو ہے نان پولیٹیکل ہیں، لیکن بیسٹ سوشل ورکرز ہیں ہماری پی ٹی آئی کی خواتین. میں یہ بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہتے ہوئے کہ جیسا کام ہماری وومن ونگ کرتی رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی، اس کا تو نیمو بدل ہی کوئی نہیں. خان صاحب سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ لوکل باڈیز میں اگر ہم لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیا گیا تو ہم بہت کچھ کر کے دکھائیں گے، اور ہمیں اس میں نا اسپیشل ہماری سپورٹ کی جائے. کیونکہ ہم دیکھیں خان صاحب کی ویژن لے کے چلے ہوئے ہیں، میرے خیال میں اسپیشلی لیڈیز. اب محترمہ فوزیہ قصوری نے جو جینڈر امپاورمنٹ کی اسٹارٹ لی ہے، آپ یہ دیکھیں کوئی آسان کام نہیں ہے. چند دنوں میں ان خواتین نے میم فوزیہ کے کہنے پہ کس قدر بکس اکٹھی کی ہیں. جس طرح دیکھیے آپ کتنے ٹوائز ہیں، اور ابھی کتنے ٹرک ہماری سینی صاحبہ انچارج ہے اس چیز کی، ان کے گھر پہنچ چکے ہیں. اور انشاءاللہ عنقریب ہم یہ لے کے جائیں گے. ہم ایک ڈسٹرکٹ کو فوکس کریں گے، وہاں کے اسکول کو رول ماڈل بنائیں گے اور وہاں یہ ساری چیزیں پہنچائیں گے میم فوزیہ کی صدارت میں. اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے محترمہ فوزیہ کی اجازت ہے کہ جو پنڈی ڈسٹرکٹ میں جتنی بھی خواتین جینڈر امپاورمنٹ پہ انٹرسٹڈ ہیں، والنٹیئر بیسس پہ کام کرنا چاہتی ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا نام لکھوائیں اور آگے اس بات پہ حصہ لیں. میں اپنی سینئر ممبر جو میری پنڈی کی ہے صدارت، اس کے ساتھ آؤں گی، جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں ان کو دیکھوں گی، اور انشاءاللہ ہم لوگ بہت مسئلے حل کرنے میں آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے. بس میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. میں نے بس آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے، ہم سب پی ٹی آئی ہیں، ہم لوگوں کو ایک ساتھ یونٹی سے کام کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو بٹنا نہیں چاہیے. اور مطلب یہاں نام لینے کا تو نہیں ہے، لیکن میں نفیسہ آپا دیکھیں پلیز مجھے آج مت روکیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہوتا ہے. فوزیہ کا انہوں نے بہت ساتھ دیا، اور ہم لوگ یہ جینڈر امپاورمنٹ کا نہ ہونے والا کام لے کے شروع کیا ہے ہم نے. انشاءاللہ ہم لوگ آگے آپ لوگوں کے ساتھ چلیں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خواتین ہمارا ساتھ دیں گی، میں فوزیہ کا ساتھ دیں گے. تھینک یو سو مچ. میں دعوت دیتی ہوں کبھی عبدالمفتی صاحب کو، جو تقریب میں بہت دیر سے آئے ہیں، تو میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ پلیز اسٹیج پر آئے اور اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں. تلاوت ہمیں انہیں سے شروع کرنی تھی، لیکن میرا خیال ہے ٹریفک میں پھنسے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت قابل احترام، قابل قدر خواتین و حضرات، آج کی یہ خوبصورت محفل ہماری بہن
मोहतरमा फौजिया कसूरी साहबा ने सजाई है। सबसे पहले तो मैं उनकी खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ। आज उन्होंने उस मेहनत, उस मुजाहिदा जो उनकी तशरीफ आवरी से पहले और उनकी तशरीफ आवरी के बाद तहरीक इंसाफ को हासिल रहा और हम सब के कायद मोहतरम इमरान खान साहब को हासिल रहा। पिछले दिनों जो उनके कुछ मामलात हुए तो मैंने मोहतरम इमरान खान साहब को एक बात कही थी कि जिस वक्त मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैंने शमूलियत इख्तियार की, यकीन फरमाए मेरा ज़मीर मुतमईन था, मेरा दिल मुतमईन था कि मैं उस जमात में आया हूँ जिस जमात में अदल की बात होती है, इंसाफ की बात होती है, सदाकत की बात होती है, एहतराम इंसानियत की बात होती है और उस जिंदा ज़मीर की बात होती है जो जिंदा ज़मीर की नेमत अल्लाह ने हम सबको अता फरमाई है। तो मैं सबसे ज्यादा मुतासिर जिस शख्सियत से हुआ उसका नाम मोहतरमा फौजिया कसूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह टेलीविजन की इस बात का गवाह है कि मैं जब भी बात करता हूँ हकीकत की बात करता हूँ और जुर्रत की बात करता हूँ। मैंने मोहतरम इमरान खान साहब को कहा कि मैंने कहा मोहतरमा फौजिया कसूरी साहबा का आपके साथ जिस मोहब्बत और इखलास का ताल्लुक है, मैं आपको वही बातें सुनाता हूँ जो खालिद इब्न वलीद ने कहा था कि अहले मक्का जिस जमात के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ बिलाल हबशी जैसा मुखलिस आदमी मौजूद हो, वो तहरीक कभी नाकाम नहीं होती। मैंने कहा यही जुमला मैं खान साहब आपको कहता हूँ, आपकी जमात के अंदर अगर मैं किसी के इखलास से और मोहब्बत से मुतासर हुआ हूँ तो उसका एक ही नाम है जिसका नाम फौजिया कसूरी है। मैंने कहा खान साहब मुबारक हो, इंशाअल्लाह जिस जमात में फौजिया कसूरी साहब मौजूद हो और आप जैसे मुखलिस खवातीन हजरात मौजूद हो, उनको मैं खुशखबरी सुनाता हूँ कि हर आने वाला लम्हा हमारी कामयाबी का लम्हा है। अल्लाह ने दुनिया का निजाम इसी हकीकत के साथ वाबस्ता किया है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो कुछ नसीब एक मेहनत के साथ, एक मुजाहिदे के साथ, इखलास और मोहब्बत के साथ जिस तहरीक से वाबस्ता हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है फिर वही खुश नसीब तहरीक हुआ करती है, वही इदारा हुआ करता है जिनको मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन कामरानी और कामयाबी अता फरमाता है। तो ताखीर से आने पर मैं इंतहाई माजरत खां हूँ। मोहतरमा ने फरमाया था कि कुरान मजीद की कुछ आयात आपके हवाले से मैं तिलावत करूँ। बहरहाल वक्त में तिलावत तो नहीं है, लेकिन सिर्फ एक जुमला अर्ज करके खवातीन के हवाले से इजाजत चाहता हूँ कि खवातीन हो और औरत हो, ये वो खुश नसीब तबका है जिसके हवाले से मेरे रब्बुल आलमीन ने मर्दों के हवाले से कुरान मजीद में सूरत को नहीं उतारा। अगर कुरान में सूरत उतारी है तो अल्लाह ने सूरत निसा आप खवातीन की मुनासबत से उतारी है, जिनका वजूद मेरे रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि दुनिया की जीनत मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों के जरिए अता फरमाई। इंसानियत को सुकून मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खवातीन के जरिए अता फरमाया। आप वो खुश नसीब तबका है जब दुनिया में आते हैं, मेरा नबी रहमत कहता है कि आपकी तशरीफ आवली बाइस रहमत है। जब आप बड़े हो जाते हैं, मेरे नबी रहमत फरमाते हैं कि आप जब सुकून की जिंदगी गुजारते हुए दुनिया के अंदर रहते हैं, आना अबुल बनात, कल जितने खुश नसीब होंगे जिन्हें अल्लाह ने बेटियां अता फरमाई है, सारे बेटियों से ताल्लुक रखने वाले खवातीन मैं मोहम्मद के साथ होंगे, झंडा मेरे हाथ में होगा और मेरे साथ जो मिलके ये खुश नसीब खवातीन जन्नत में दाखिल होगी। अल्लामा इकबाल ने भी आपको कायनात का हुस्न करार दिया है। इस हवाले से मैं आप हज़रात का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस मोहतरमा फौजिया कसूरी साहबा का, और आपको फिर ये जुमला अता करके जाता हूँ कि खालिद इब्न वलीद जैसा मंशा हमारे अंदर मौजूद है। जब हम मुजाहिदे के साथ, इखलास के साथ मोहतरम इमरान खान साहब के साथ होंगे और इस तरह मोहतरमा हमारी क़ियादत फरमाएगी,
यकीनन हर आने वाला दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और इमरान खान का। मोहम्मद फुरकान ISF डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के एक्स जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और अब यूथ विंग के कोऑर्डिनेटर हैं। मैं चाहूंगी कि वो आए और यूथ के बारे में इज़हार ख्याल करें। मोहम्मद फुरकान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, तेरी इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं। अल्लाह ने कभी उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो खुद ख्याल जिसे अपनी हालत के बदलने का। मदर ऑफ PTI मोहतरमा फौजिया कसूरी साहिबा, मोहतरम जनाब आजम खान सवाती साहब, मोहतरम तमाम MNAs, MPAs, तमाम खवातीनो हज़रात और ख़ास तौर पर इमरान के सिपाही, इकबाल के शाहीद, इस पाकिस्तान के मुहाफिज, पाकिस्तानी अवाम के मुहाफिज, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि पाकिस्तानी कौम एक जिंदा दिल कौम है, पाकिस्तानी कौम एक बहादुर कौम है। ये डरती है तो सिर्फ अल्लाह से, ये झुकती है तो सिर्फ अल्लाह से। हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, मगर कभी हार नहीं मानेंगे। दोस्तों, आज पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब पर लगी हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम, बिलखुसूस पाकिस्तान का नौजवान और पाकिस्तान की खवातीन इमरान खान के साथ हैं। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान से ये करप्ट सिस्टम खत्म करना चाहते हैं, अगर आप इन जालिमों से, इन चोरों से, इन डाकुओं से, इन लुटेरों से निजात चाहते हैं, तो आपको आगे आना होगा और आने वाला बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना होगा। जैसा कि जनरल इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खास तौर पे चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने यूथ को और खवातीन को भरपूर नुमाइंदगी दी, ये उनका वादा है कि आने वाले बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर भी वो इसी तरह खवातीन को और नौजवानों को भरपूर नुमाइंदगी देंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के नौजवान और बिलखुसूस पाकिस्तान की खवातीन बहुत टैलेंटेड है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हमें आगे आना होगा और हमें लड़ना होगा। आप तमाम दोस्तों से, तमाम लोगों से मैं एक मरतबा फिर ये गुजारिश करता हूँ, नौजवानों, आप लोग आगे आए, भरपूर तरीके से बल्दियाती इलेक्शनों के अंदर हिस्सा लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद और नुसरत फरमाएगा। आखिर में मैं एक मरतबा फिर मदर ऑफ PTI मोहतरमा फौजिया कसूरी साहिबा, उनकी पूरी टीम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह जो झंडा आपने बुलंद किया जेंडर एम्पावरमेंट का, जिस तरह और खान साहब की रवायात को बरकरार रखते हुए, जिस तरह खान साहब ने हमेशा नौजवानों को आगे आने का मौका दिया, आपने उनकी रवायात को बरकरार रखते हुए जेंडर एम्पावरमेंट में न सिर्फ नौजवानों को अपने साथ रखा बल्कि अहम जिम्मेदारियां भी दी। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको हर जगह, हर मौका पर यूथ आपके साथ होगी, नौजवान आपके साथ होंगे, आपके हरावल दस्ता होंगे और हर जगह पर आपसे 2 कदम आगे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नसीमुर रहमान साहब, जो सीनियर डायरेक्टर हमीद ट्रस्ट हैं, आपको मैं दावत देती हूँ कि आए और अपने ख्यालात से हमें जेंडर एम्पावरमेंट के बारे में नवाजें। नसीमुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। डियर फौजिया बहन, इस्मत सवाती साहब, मसूदुल मुल्क साहब और बाकी बहुत सारे दोस्त हैं और बहनें हैं। मुमकिन नहीं कि हर एक का
नाम लेके जो है उसका इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे पहले मैं ये लाजमी समझता हूँ कि जिन दोस्तों से मेरा तारुफ नहीं है उनको मुख्तसरन मैं बताता चलूँ कि मुझे फौजिया बहन ने आज किस लिए यहाँ बुलाया है। मेरा नाम नसीमुर रहमान है। मैंने यूनिसेफ के अंदर तकरीबन 30 साल के लिए काम किया है, खास तौर पे इस तरह के इश्यूज के ऊपर, वुमेन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर एंड सैनिटेशन। फिर उसके बाद मैं जॉर्डन में था तो इमरान ने मुझे कहा कि पाकिस्तान आऊँ, और सैलाब के दौरान इमरान खान फाउंडेशन के लिए मैंने सिंध में और बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में इन इलाकों में काम किया। जेंडर एम्पावरमेंट के हवाले से मेरी जिम्मेदारी आज एक तो ये है कि थोड़ा सा जेंडर एम्पावरमेंट के जो बड़े बड़े इश्यूज हैं उसके बारे में आपसे बात हो जाए। दूसरा ये भी आपके जहन के अंदर ये सवाल होगा यहाँ आते हुए कि हमें किस लिए बुलाया गया है। इन दो सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहली बात है जेंडर एम्पावरमेंट के हवाले से कि जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स हैं, तकरीबन 130 ममालिक के उन्होंने पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और जो एक्टिविटीज खवातीन की बेहतरी के लिए हैं उनको स्टडी करने के बाद वो इस नतीजे में पहुंचे कि 130 ममालिक में से पाकिस्तान का नंबर 115वां है, नीचे से 115 मुल्क हमसे बेहतर है जेंडर एम्पावरमेंट। उसमें बांग्लादेश भी हमसे बेहतर है, उसमें इथियोपिया भी हमसे बेहतर है, उसमें चाड भी हमसे बेहतर है। तो एक तो ये वाली बात थी कि पाकिस्तान में जो ये नारेबाजी का कल्चर है और जो ये शोर व गुल का कल्चर है, इसके अंदर असल हकायक अक्सर दब के रह जाते हैं। एक दूसरी रिसर्च के बारे में ये कहा गया है कि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर वुमेन, औरतों के लिए तीसरा सबसे ज्यादा खतरनाक मुल्क जो है उसका सेहरा भी हमारे मुल्क के सर के ऊपर है। ये वो बातें हैं जेंडर एम्पावरमेंट के हवाले से कि हम इस वक्त बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर हैं। उसके बाद ये इस इलेक्शन के अंदर जो इमरान साहब ने काम किया और पीटीआई के आप जैसे लोग जो हैं, वजीर ने बताया कि आज आई हैव एन अपॉर्चुनिटी कि जो लीडर्स हैं पीटीआई के, खवातीन और दूसरे हमारे भाई भी, इनके साथ थोड़ी बात हो सके ताकि उनको पता चले कि इलेक्शन के दौरान क्या बात हुई थी और अब किस चीज की ज्यादा जरूरत है। ये मैं आपको बताता चलूं कि इस इलेक्शन में भी पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 6 औरतें जनरल इलेक्शन की सीट के ऊपर जीत कर आई, और वो 6 की 6 औरतें किसी फ्यूडल लॉर्ड की बहन, बेटी, सास, माँ, इस तरह के रिश्ते, उससे मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन जब तक हम औरतों को फौकियत देंगे किसी और हवाले से तो मुल्क आगे की तरफ तरक्की नहीं कर सकता। 6 सीटें 3 पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ली औरतों के लिए, और 3 सीटें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में औरतों को जनरल इलेक्शन में नेशनल असेंबली में 1 भी सीट नहीं। अच्छा, अब उसके बाद आइए सूबाई असेंबली की तरफ। सूबाई असेंबली में सिर्फ 10 औरतें जो है वो जनरल सीट के ऊपर इलेक्शन लड़के आई हैं। इसमें मैं इसको लिंक करना चाह रहा हूं कि जब मुल्क के अंदर कुछ ऐसे लेजिस्लेटिव एक्शन हो जिससे कि रास्ता खुले कि खवातीन आगे आए और लीडरशिप के रोल अदा करें, अगर ये लेजिस्लेटिव एक्शन और औरतों के लिए 60 रिजर्व सीट्स ना होती तो आज की असेंबली, जिसका डडोरा पूरी दुनिया में हम पीट रहे हैं कि जमहूरियत की फतह है, it would have been a male-dominated assembly devoid of good, strong women. So, सिर्फ लेजिस्लेटिव होने से एक किस्म की आपको प्रोटेक्शन तो मिल सकती है, लेकिन उससे आपके मुल्क के अंदर खातरफा तब्दीली नहीं आ सकती। दूसरी बात देखने वाली ये थी कि औरत फाउंडेशन ने ये जेंडर एम्पावरमेंट में और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इलेक्शन से पहले उनके मैनिफेस्टोस को स्टडी किया। उसमें तहरीक इंसाफ भी थी, उसमें मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी, जमात इस्लामी, तो वो भी अपनी रिपोर्ट में ये कहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी संजीदा नहीं है औरतों के मसाइल हल करने के लिए, औरतों को आगाही देने के लिए, औरतों को माशरे में वो मुकाम देने के लिए जो कि उनका बुनियादी हक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है,
जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन पाकिस्तान ने साइन की हुई हैं। तो पाकिस्तान के अंदर हम अक्सर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर UN कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, CEDAW, चाइल्ड राइट्स का हमने किया हुआ है, ह्यूमन राइट्स के हमने किए हुए हैं, लेकिन हम वो करते हैं टोकनिज्म के तौर के ऊपर, अपॉर्चुनिस्टिक वे, ताकि हम ये साइन कर लें, USAID से पैसे ले लें, वर्ल्ड बैंक से पैसे ले लें, IMF से पैसे ले लें, UN अदारों से पैसे ले लें। एक सरकारी अहलकार या कोई वजीर या कोई वजीर आजम या कोई वजीर आला बाहर के मुल्क में जाएगा, साइन करेगा, कौम से उसके बारे में कोई किसी को उसका इल्म भी नहीं है। तो जब हम बाद में अपने सूबे की सतह के ऊपर, जिले की सतह के ऊपर बच्चों के हकूक, औरतों के हकूक की बात करने जाते थे, जब मैं यूनिसेफ में काम करता था, वो कहते थे हम तो जानते भी नहीं है कि बच्चों के हकूक क्या है, हमारी हुकूमत ने साइन किए, हमें तो पता ही नहीं। तो हुकूमत जो है वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्टिक वे के लिए, इन चीजों को दिखावे के लिए हमने इस मुल्क के अंदर किया है। अब मैं समझता हूँ कि जो ये जेंडर एम्पावरमेंट पे फौजिया कसूरी साहिबा और बाकी PTI के दोस्त कोशिश कर रहे हैं, ये अगर हम इसके बारे में सीरियस है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए हमें एक कौमी बेदारी की जरूरत है, जिसको बोलते हैं कि नेशनल अवेकनिंग ऑन द इश्यूज ऑफ वुमेन। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर एम्पावरमेंट की बात हो रही है तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात हुई, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट अभी तक नहीं हुई। इस हद तक हुई है कि 34 मिलियन वुमेन वोटर्स आई, उन्होंने वोट दिए, लेकिन 34 के मुकाबले में 47 मिलियन आदमी वोटर थे। पहला सवाल ये है कि वेयर आर द 10 मिलियन वुमेन जिनको रजिस्टर नहीं किया गया, जिनके CNIC कार्ड से नहीं बने, दोज आर द मिसिंग वुमेन। हम उनको चांस नहीं देते कि वो वोट का भी, फिर कई इलाकों में वोट था उनका, लेकिन बड़े बड़े जो सियासतदान हैं वो बैठ के फैसला करते हैं कोई औरत वोट देने नहीं जाएगी। इस तरह के हालात के अंदर अगर हम ये देखें कि औरतों की आवाज प्रोग्राम्स के अंदर शामिल नहीं होती, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में शायद पॉलिटिकल पार्टी सीरियस हैं कि नहीं है। जहां तक इमरान साहब का ताल्लुक है, इतना मैं कह सकता हूं कि मैं आपको आज ये नहीं बताना चाह रहा, मेरा भी उनके साथ मैंने काम किया है, इमरान खान फाउंडेशन में भी काम किया है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट इमरान खान इज, आई विल टेल यू व्हाट इमरान खान इज नॉट। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि इमरान खान जो नहीं है, जो चीजें उसके अंदर, पहली बात यह है कि वो सीक्रेटिव नहीं है, खुफिया जाके बातें एक कमरे में किसी से सियासतदान से कुछ और दूसरे सियासतदान से कुछ, जो उसकी बात दिल में है वही बात उसकी जुबान के ऊपर है। और अक्सर हम भी उन्हें कहते हैं कि इमरान साहब ये तो अनफॉर्चुनेट चॉइस ऑफ वर्ड्स, वर्ल्ड कप आपकी टीम ने जीता, आपने कह दिया आई हैव वन द वर्ल्ड कप, बट इमरान रिकॉग्नाइज्ड, और उसने बाद में कहा कि दैट वाज अनफॉर्चुनेट चॉइस ऑफ वर्ड्स। लेकिन जो उसके दिल बात होती है, साफ बात बोलते हैं। सो इमरान सीक्रेटिव नहीं है, इमरान मैनिपुलेटिव नहीं है, वो लोगों को मैनिपुलेट नहीं करता, वो अपने सियासी लीडर्स को मैनिपुलेट नहीं करता, वो दूसरी पार्टीज को मैनिपुलेट नहीं करता। इमरान खान जो है वो डरने वाला आदमी नहीं है, इमरान खान झूठ नहीं बोलता। इन चीजों की वजह से, और वो डेमोक्रेसी में यकीन रखता है, तभी तो हमारी PTI की पार्टी है, उसके अंदर चंद एक ऐसे भी फैसले हुए इलेक्शन के दिनों में जिसमें कि पार्टी के लोग नाला थे, लेकिन अगर इमरान ने किसी को एक जिम्मेदारी सौंप दी तो वो फिर उस पार्लियामेंट्री कमेटी की जिम्मेदारी है कि किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी। मैं 2 साल तक इमरान खान फाउंडेशन का CEO रहा हूँ, अभी भी ऑनररी में काम कर रहा हूँ। 2 साल में एक बार भी इमरान खान ने मुझे ये नहीं कहा कि इस आदमी को इस पे ये जॉब दो, इस प्रोग्राम को इस जिले के अंदर लेके जाओ या उस गांव के अंदर लेकर जाओ। और दूसरी बात ये है कि इमरान थकने वाला नहीं है। अगर हम उसे कहते हैं कि बदीन के एक गांव के अंदर आओ तो वहां भी वो जा सकते हैं। डेरा इस्माइल खान के दूर अफ्तादा विलेज में उसको लेके जाना है, वो आप लोगों की आवाज के ऊपर आपके साथ चलने वाला है, वो रुकने वाला नहीं है। इसलिए जो आपकी खवातीन ने इस इलेक्शन में किरदार अदा किया है, मैं आपको ये दिल से बता सकता हूँ कि इस पार्टी में अगर किसी के दिल में, ऑब्वियसली जो लीडर्स हैं और जो खवातीन हैं जिन्होंने खुद कोशिश की, आपको तो एहसास होगा, लेकिन इमरान भी उसका दिल से मरहूम मिन्नत है। और ये आपने देख लिया था कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ है तो मैं भी वहां अगले दिन ही गया था उनसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए। इमरान एरोगेंट नहीं है, इमरान प्राउड नहीं है, इमरान एलिटिस्ट नहीं है,
इमरान एक बेसिक आदमी है जो कि जमीनी आदमी है। जब मैं उसको कमरे में जाके देखा, मेरी बहनों को मैं आपसे ही बता रहा हूँ कि इमरान से मिलने के बाद मैं 7 वाले बेड के ऊपर गया तो ये यूनिट था, इमरजेंसी यूनिट, और सिर्फ एक पर्दा लगा हुआ है। और दूसरी तरफ मैंने एक औरत से जाके पूछा कि मासी तू कितों आई है? उन्होंने कहा मैं तेरी बिहाड़ी तो आई है, मेरे पुत्र को कैंसर है। 7 वाले बेड के ऊपर एक आदमी जिसने कि वो हॉस्पिटल बनाया हुआ है, उसके अंदर भी उसको वीआईपी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी। तो ये वो चीजें हैं कि अगर लीडरशिप के अंदर इस तरह की चीजें हैं तो वो जेंडर एम्पावरमेंट के लिए भी बेहतर साबित हो सकती है। अब दूसरी तरफ आप आइए कि सिर्फ ये इमेजिन करें, शायद मुझे इशारा दिया जा रहा है कि खत्म करूं, ओनली 2 मिनट्स। एक दिन के लिए आप इमेजिन करें कि औरतें अगर कॉटन पिकिंग ना करें, मैंने सिंध के अंदर देखा है, मुल्तान में देखा है, बहावलपुर में देखा है, रहीम में, एक दिन अगर औरतें कॉटन पिकिंग के लिए ना जाएं तो पूरी आपकी कॉटन एक्सपोर्ट तबाह हो सकती है। कोई आदमी इस काबिल नहीं है कि वो जाके ये बैक ब्रेकिंग लेबर और कॉटन के फूल ऐसे करके चुन सके। मिर्चें चुने तो औरतें, कॉटन चुने तो औरतें, अजाब चुने तो औरतें, रेप हो तो औरतों का, एडिक्शन हो तो औरतों की। टेलीविजन पे रात दिन हम ये उनकी चीखती चिल्लाती रोती हुई आवाजें सुन के आदमी के दिल कटता है। किसी की बेटी अगवा हो गई, कोई रेप हो गया, तो बाद में उनको 5 लाख 10 लाख देने से अजाला नहीं होगा। अजाला उसी सूरत में होगा जबकि पॉलिटिकल लीडरशिप सामने आए और एक जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए अगेंस्ट द वायलेंस ऑफ वुमेन। देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस whenever a woman is abducted or raped or taken away. The laws are not there only as a deterrent. सिर्फ इसलिए कानून नहीं है कि लोगों को दिखा दें, कानून पे अमल तो करो, तब तो हमें पता चले कि भाई हम संजीदा हैं इस चीज के लिए। लड़कियां स्कूलों में क्यों नहीं जा रही? मेरे घर में मेरे मुलाजिमा की बेटी हो, कल उसके साथ आई हुई थी, मैंने कहा ये सलमा स्कूल क्यों नहीं गई? कहती है जी इन्होंने तो स्कूल लेके जाना नहीं सी। मैं कहा सलमा तू क्यों नहीं गई? कहती है जी राह दे विच लोग की तंग कर देने। That is our culture. Where is gender empowerment? अगर खैबर पख्तूनख्वा में हम काम करने की तरफ जा रहे हैं तो ठीक है, पाकिस्तान में ऐसी औरतें मौजूद हैं, फौजिया कसूरी जैसी औरतें मौजूद हैं, खैबर मुमताज है, और दूसरे अदारों के अंदर नजमा सादिक है, कायरा अब्दुल्ला है, नाहिद अजीज है, रियाना हाशमी है, हजारों ऐसी औरतें हैं जो कि अपनी जान की बाजी लगा के काम कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो सकता है गर्ल्स एजुकेशन के लिए? इन औरतों में मलाला भी हमारी छोटी बेटी की तरह से है जो कि अपनी जान की कुर्बानी दे रही है। क्या कोई गवर्नमेंट है जो कि लड़कियों के स्कूलों के बाहर प्रोटेक्शन दे सके? सिर्फ 2 घंटे की जो स्कूल का उनका टाइम है स्कूल आने का और स्कूल जाने का, जिसमें मैं कहूँ कि मैं अपनी बेटी को स्कूल भेज सकता हूँ। हजारों की तादाद में पुलिस जो है वो वीआईपी कल्चर की ड्यूटी पर लगी हुई है। क्या हम स्कूल को नो क्राइम जोन करार नहीं दे सकते? इसी से आप देखेंगे कि लड़कियों की तालीम की हसूल के लिए जो कोशिश है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो कारिंदे हैं, औरतों को तालीम तो देंगे हम, तालीम के बाद उनको मुलाजमत की तहफ़्फ़ुज़ भी होनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान में पिछले 60 साल में एक औरत भी लैंड रेवेन्यू ऑफिसर मुकर्रर नहीं हुई, जिसको कि इमरान कहता है पटवारी का कल्चर खत्म करो। इसलिए कहता है कि ये सरमायादारों के हाथ में एक टूल है। अगर आप स्टेटस को तोड़ना चाहते हैं, आपकी पार्टी इमरान खान इसलिए मैदान में आया है कि स्टेटस को तोड़ना है। स्टेटस को तोड़ने के लिए जेंडर एम्पावरमेंट का रास्ता है। स्टेटस को तोड़ने के लिए बेटियों की तालीम, उनकी सेहत, जिस मुल्क में 50% औरतें जो प्रेगनेंसी में एनीमिक हैं, अगर हम उनको फॉलिक एसिड नहीं दे सकते, खैबर पख्तूनख्वा में इन चीजों की इब्तिदा हो रही है। लास्ट वीक ही इमरान से मैंने कहा कि भाई तालीम में क्या हुआ? कहने लगा 2 लाख बच्चे नए स्कूलों के अंदर हमने एनरोल किए हैं। मैंने कहा एनरोल करना आसान है, उनको स्कूल में रखना मुश्किल। जब वो स्कूल में आते हैं तो उनको किताबें भी दो, जब वो स्कूल में आते हैं तो उनको एक मिनिमम खाना भी दो, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है गरीब लोगों के सर के ऊपर। तभी तो ये हम इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं कि हमारे मुल्क के अंदर तालीमी इनकात इतना ज्यादा है। तो ये वो चंद एक चीजें थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। और मैं समझता हूँ कि औरतों के प्रोग्राम में फौजिया बहन जो इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज्यादा रिटर्न इसमें मिलेगा। ये रिसर्च बताती है कि अगर आप औरतों के प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट करेंगी तो मुल्क के अंदर सेहत का मेयार, तालीम का मेयार,
बेसिक सहूलतों का मेयार और जो सेहत की खराबी के ऊपर जो खर्चा होता है वो सारे के सारा कट के हाफ हो जाएगा। लिहाजा जो इलेक्शन से पहले बातें हुई हैं अब है उनके ऊपर अमल दरामद करने का। अब ये है कि हेल्थ के अंदर बजट एलोकेशन भी सिर्फ काफी नहीं होती, उसको आगे चलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर कैसे हॉस्पिटल है, बेसिक हेल्थ यूनिट। और तीसरी और आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम ये सोचेंगे कि इमरान ये काम नहीं कर रहा, या मीडिया वाले कहते हैं ये तो 90 दिन में फेल हो गए, ये तो एक्सपोज हो गए, क्योंकि ये एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है। ये इतना बड़ा काम है कि घर घर के अंदर ये काम जो है ना बिखरे हुए पड़े हैं। सो वी हैव टू हैव एन इंक्लूसिव पार्टनरशिप। पहले दिन से इमरान ये कह रहा है कि मैं एक इंक्लूसिव पार्टनरशिप चाहता हूँ, मैं एक इंक्लूसिव पार्टी चाहता हूँ कि उसमें सबकी शमूलियत होनी चाहिए, इसमें हमें हिस्सा डालना चाहिए। देयर आर डॉक्टर्स हु आर विलिंग टू वर्क फॉर द पुअर वुमेन। मैं रात के 1 बजे मेडिकल स्टोर पे गया तो एक औरत जो यहाँ पे काम करती है बस्ती में, वो अपनी छोटी बच्ची को लेकर आई हुई थी और रो रही थी, और फार्मासिस्ट से कह रही थी कि जी इसको दस्त आ रहे हैं, मुझे लगता है सुबह तक मर जाएगी, बताओ मैं इसको क्या दूं। तो वो फार्मेसी की जो लड़की थी वो उसको दवा दे रही थी। मैंने कहा ये कौन कह रहा है कि 70% गरीब औरतें मेडिकल स्टोर पे आके पूछती हैं कि हम कौन सी दवा लें। क्या उनके लिए कोई डॉक्टर नहीं है? क्या उनके लिए पढ़े लिखी डॉक्टर्स पीटीआई के सपोर्टर्स नहीं है? वो बिल्कुल हैं। आप 1 घंटा दीजिए, आप 15 मिनट दीजिए। हम फौजिया बहन से कहते हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा में जो ये इब्तिदा कर रही हैं, ये एक ऐसी फैसिलिटी दे जिसमें कि हम डॉक्टर्स को एनरोल करें। आईकेएफ का हम काम यही कह रहे थे कि आवर पर्पस इज, आवर एम इज टू कनेक्ट द पीपल हु वांट टू हेल्प विद दोज हु नीड द हेल्प। हमारा ये ईमान है कि आप हेल्प करने वाले लोगों में, तभी आप इमरान खान की आवाज को बढ़ाते। और इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग इधर आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और मैं माफी चाहता हूँ कि 3 बजे का वक्त था और तकरीबन 4 बजे से भी बाद में जाके ये फंक्शन शुरू हुआ है, फिर चंद एक मेहमानों ने बाहर से आना था। तो ये कोताहियां भी जो है ना, इसको भी आप नजरअंदाज कीजिए, क्योंकि एक आप अच्छे जज्बे और एक अच्छी सोच और एक अच्छी उम्मीद लेके निकले हैं। और मेरी भी दुआ अपनी दुआओं में शामिल कर लीजिए, और वो दुआ यही है कि अमन मिले, मेरे बच्चों को इंसाफ मिले, चांद सा उजला दूध मिले और पानी साफ मिले। बहुत शुक्रिया मोहतरम आपका, आपने बहुत अच्छी बातें हम लोगों के साथ की। और एक शुक्रिया आमिना का कि उन्होंने माइक जो है वो मुझे नाचीज को हैंड ओवर किया। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने अपने शोबे में बहुत आला काम कर रहे हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हमारी अगली स्पीकर जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगी, उनका नाम मिसेस समीना फाजिल है, और वो फाउंडिंग प्रेसिडेंट है पाकिस्तान में वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की और बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की। मिसेस समीना फाजिल यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगी, और मेरी हर स्पीकर से गुजारिश है कि वो अपने मुकर्ररा वक्त के अंदर ही अगर अपने जज्बात को अल्फाज का रूप दे दी तो बहुत बेहतर है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपनी तमाम बहनों और भाइयों को और मोहतरम मैडम फौजिया कसूरी को सलामत करती हूँ। आज मैडम ने फोन किया और कहा कि आप भी आए, और इतनी तादाद में पूरे पाकिस्तान से हमारी बहनें यहाँ पे तशरीफ लाई हैं, उनसे आप भी कुछ बातचीत करें। जब मैंने आज का मैनिफेस्टो देखा जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है और माइक्रो फाइनेंसिंग की बात की गई है, ये दोनों ही ऐसे इशू हैं जिनपे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान में 52% पॉपुलेशन जो है वो खवातीन से मुश्तमिल है, तो जब तक हम इनके लिए कोई ऐसा काम नहीं करेंगे और इनको अपने भागदौड़ में शामिल नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ मैडम फौजिया कसूरी से और इमरान खान साहब के से कि वो इन दोनों ही इश्यूज के ऊपर सबसे जो है प्रायोरिटी बेसिस पे इसके ऊपर काम करें।
फाइनेंसिंग की बात है तो बदकिस्मती से अगर आप देखें तो पूरे पाकिस्तान में हमारी खवातीन के नाम पे ना तो कोई प्रॉपर्टी होती है और ना ही ऐसी कुछ दूसरे असासे होते हैं जिसको कैपिटल करके और बैंक्स के साथ कुछ लोन ले सके। और सबसे बड़ा इशू खवातीन के लिए यही है कि उनके पास इतने फाइनेंसेस नहीं होते कि वो अपना कुछ भी काम शुरू कर सके। मैं तो पिछले 23 ईयर से मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि मुसलसल हम लोग बैंक्स के साथ मीटिंग भी करते हैं लेकिन कुछ ऐसा उनकी पॉलिसीज चेंज नहीं होती। तो बड़ी हमें उम्मीद है कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है इसके ऊपर जरूर कुछ अपनी पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट के सामने लेकर आएंगे खवातीन के हवाले से, क्योंकि जब तक खवातीन जो है अपना सियासी काम के साथ साथ अगर वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में शामिल नहीं होगी या अपना कुछ कारोबार की तरफ नहीं आएंगी तो हम किस तरीके से तरक्की कर सकते हैं। तो इस तरह की पॉलिसीज जो है वो बनाई जाए जिसमें खवातीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात हो कि वो अपना कारोबार शुरू करने के लिए कुछ अगर बैंक से लोन लेना चाहें तो आसान शराइत पे जो है वो लोन लेके और अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं या कोई नया कारोबार शुरू कर सकें। क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो मुल्क में कोई जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं है और खवातीन मैं समझती हूँ कि लड़कों से ज्यादा जो तालीम है इस वक्त उसमें जो है हमारी बच्चियां हैं। तो अगर वो इतनी ज्यादा तालीम हासिल करने के बाद उनको अगर जॉब्स नहीं मिलती तो वो उस जो इतने मुश्किल दौर में पेरेंट्स जो हैं इतनी फीसेस देके अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं, तो वो फिर बिजनेस की तरफ आए। लेकिन जब वो बिजनेस के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली सबसे पहले जो है वो फाइनेंस उनके लिए एक मसला होगा। तो इस तरह की पॉलिसीज बनाए जाए। मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट के सामने लेकर आए जो कि हमारी खवातीन को उससे फायदा हासिल हो। और इसी तरीके से विमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 33% सीटें जो है वो खवातीन के लिए मुख्तस की गई हैं। लेकिन अगर आप देखें 33% के हिसाब से खवातीन हमें ऐसी काम करती हुई कहाँ नजर आती हैं। तो स्पेशली जब हम इस चीज की बात करते हैं तो जब हम उन खवातीन को असेंबली में लेकर आते हैं, जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि मैन डोमिनेटिंग असेंबली, तो यकीनन वो मैन डोमिनेटिंग असेंबली ही नजर आती है हमें। वो खवातीन जो सीटों पे तो बैठी हुई है लेकिन उनको कोई इख्तियारात नहीं है कि वो आगे बढ़ के कोई काम कर सके। तो इस तरीके की खवातीन को असेंबली में बिठाना मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा ज्यादती है उन खवातीन से जो कि मुस्तहिक हैं और जो कि काम कर सकती हैं। उनको आगे लेकर आना चाहिए सियासी बुनियादों के ऊपर ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। और वो खवातीन जो असेंबली में बैठी हुई हैं वो खवातीन के लिए ऐसी पॉलिसी सामने लेकर आए जो कि आने वाले वक्तों में अच्छी साबित हो। तो तहरीके इंसाफ की मैं वोटर भी हूँ, हमारी पूरी फैमिली ने तहरीके इंसाफ को वोट दिया और बड़ा अच्छा हम उम्मीद करते हैं कि ये तहरीके इंसाफ जो है ये जमात में इतनी तादाद में खवातीन अब शामिल जो है वो हो रही हैं दिन रात। तो जब स्पेशली जब खवातीन के कंधों पे कोई काम डाल दिया जाता है तो वो मैं समझती हूँ कि मर्दों से ज्यादा कॉन्फिडेंटली उस काम को निभाती है। तो हमारी ये तमाम बहनें जो तहरीके इंसाफ से मुंसलिक हैं और होने जा रही हैं वो इस चीज को बहुत सिंसियरली आगे लेके चलेंगी। सिर्फ इसको सियासत ही ना समझें बल्कि ये एक हमारे ऊपर फर्ज है कि बाइज़ पाकिस्तानी शहरी होने के हम इस तरह के इक़दाम करें कि दिस इज अ वेरी हाई टाइम फॉर पाकिस्तान कि हम लोग जो है सिर्फ इसको सियासत ही ना लें बल्कि हम ऐसे काम करें जिससे हमारे मुल्क में तरक्की आए और गुर्बत का जो है वो खात्मा हो और खवातीन को आगे बढ़ने का मौका मिले और वो माशी तौर पे बेहतर हो जाए। आप अक्सर क्राइसिस सेंटर की जब बात करते हैं हम तो आप ये देखें कि क्राइसिस कहाँ से जन्म लेते हैं। क्राइसिस तभी जन्म लेते हैं जब आपके घरों में माशी तौर पे परेशानी आती है। तो जब हर घर में हर खातून जो है कारोबार करना शुरू कर देगी, अपनी माशी तौर पे अपने घराने को मुस्तहकम करेगी तो उससे हमारा एक माशरा जो है वो बेहतर हो जाएगा। और जब हमारा माशरा बेहतर होगा तो हमारे पाकिस्तान की भी तरक्की होगी। तो इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ मैडम फौजिया कसूरी कि आपने आज मुझे यहाँ पे आने की दावत दी और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने तमाम जो है कामों में उसमें सबसे नंबर 1 पे आप विमेन एम्पावरमेंट को और माइक्रो फाइनेंसिंग को रखेंगी ताकि हम आगे बढ़ सकें। शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया मिसेस सलीना फाजल हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस जेंडर एम्पावरमेंट सेमिनार में हमारी अगली खातून जो यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगी वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मुतल्लिक हैं और उनका नाम बतौर पीटीआई कारकुन मेरे ख्याल में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ मुंसलिक है और एक इनिशिएटिव उनका ये भी है कि पीटीआई मीडिया रिसर्च विंग की उन्होंने बुनियाद रखी, वो उसको हेड भी कर रही थी। इसके अलावा रिसर्च के हवाले से उनका बहुत बड़ा नाम, पीटीआई का जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको नजर आता है, मैनिफेस्टो जो नजर आता है, वो उस मैनिफेस्टो कमेटी की सबसे जिसे कहते हैं यंगर मेंबर थी और मैनिफेस्टो कमेटी के लिए भी उन्होंने बहुत सा काम किया। अब मैं स्टेज पर दावत दूंगी जनाब मोहतरमा मलाइका रजा को कि वो आए और पीटीआई की वही पॉलिसी जो है वो आप लोगों के सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम जी। अपनी स्पीच शुरू करने से पहले मैं वेलकम करती हूँ क्योंकि मिसेस परवेज खट्टर तशरीफ ला चुकी हैं। थोड़ी देर हो गई मेरे ख्याल में उन्हें KPK से, लेकिन उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला हम लोगों के लिए। और एक दफा फिर से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मिसेस परवेज खट्टर का, इन्होंने अपने बहुत कीमती वक्त में से हम लोगों के लिए निकाला। और क्योंकि ज्यादातर जो लीडर्स हैं वो बाकी इतने सारे काम है, उनमें इतने बिजी है, जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक हुए वो मेरे लगा कि सबसे बेस्ट हमारे लिए भी चीज गेस्ट है वो यही होंगी, तो बहुत शुक्रिया आपका। और मैं अपनी स्पीच में कवर करना चाह रही थी कि पीटीआई की जो जेंडर पॉलिसी है, जो कि मिस्टर जहांगीर खान कलीम जो कि हमारे पॉलिसी हेड थे उनके अंडर बनाई गई सारी पॉलिसीज, लेकिन अब टाइम नहीं है तो मैं वो पॉलिसीज में से जो फ्रेमवर्क है वो शेयर करूंगी। जब हमने पॉलिसी स्टार्ट की तो तब ये सोचा गया कि बजाय इसके कि आप जेंडर या वुमेन पॉलिसी जो है कोई अलग से, क्योंकि जाहिर है अगर कोई हेल्थ का इनिशिएटिव है या एजुकेशन का है तो ये तो नहीं होगा कि औरतों कोई अलग पाकिस्तान तो नहीं बनेगा। तो इन्हीं जो पॉलिसीज है उनमें जेंडर एनवायरनमेंट को वो एक स्पेशल फोकस उसके ऊपर रखा जाए। तो ये इस फ्रेमवर्क के अंदर जितनी भी पॉलिसीज बनी है हमारे पॉलिसी विंग के में उन तमाम में जेंडर को स्पेशल जो हैसियत है वो दी गई है। मेनली हमने कोई 5 एरियाज से वो जैसा कि उसमें डॉक्टर खैजा बुखारी बैठी है, सुनी बुखारी, सुनी शब्दानी, ये हमारे अपने पीटीआई के खवातीन भी जिन्होंने हमें हेल्प किया। लेकिन अभी जो सुपर इमाम साहब जिक्र कर रहे थे और फाउंडेशन का, तो जहांगीर तरीन साहब ने हमें कहा कि आप इन लोगों से भी इनपुट लें और जो भी सिविल सोसाइटी में वो वाले इंस्टीट्यूशन है जो कि जेंडर एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, हमने उन सब का इनपुट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो जितनी भी पॉलिसीज है वो इन सब की कंसेंसस के साथ मिली है, इन सब का कंट्रीब्यूशन है, उनका भी बहुत शुक्रिया। और जो 5 एरियाज हैं जिनमें हमने पॉलिसी में काम किया है वो मेनली सबसे पहला लीगल एम्पावरमेंट, उसके बाद आ जाता है जो उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है। जो इकोनॉमी में हमने 2 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था, एक तो फॉर्मल सेक्टर है और एक इनफॉर्मल सेक्टर है जो कि वुमेन होम बेस्ड वर्कर्स है। उसके ऊपर भी हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम उनके ऊपर चाहते हैं कि उनको भी लेबर लॉज के अंडर लाया जाए, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स अभी रहमान साहब जिक्र कर रहे थे, वो उनके जो भी क्राइम या उनको जिस तरह के हालात से गुजरना पड़ता है वो रिपोर्ट भी नहीं हो सकते क्योंकि वो किसी लॉ के अंडर काम नहीं करती होती और उनको उनके जो हकूक है वो नहीं मिल रहे होते। एजुकेशन के ऊपर जो सबसे ज्यादा जो मेन फोकस था हमारा कि गर्ल चाइल्ड जो है वो हमारा मेन फोकस रहेगा, उस पे हम जो एजुकेशन का बजट है वो 60% औरतों की एजुकेशन के ऊपर कर रहे हैं। और केपी में आप उनसे बताएंगे कि हमारे जो भी इनिशिएटिव्स हैं उन सब में औरतों की तालीम के ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। फिर मैं थोड़ा सा ब्रीफली अपना बताना चाहूंगी कि पॉलिटिक्स में आने से पहले बहुत सारी खवातीन को मैंने सुना था, टीवी पे देखा था, लोगों से सुना था, उसमें 2 तरह की खवातीन नजर आती थी। एक ही तरह की आती थी जिनको हमेशा किसी न किसी मर्द की सपोर्ट की वजह से जो भी काम उनका
ملتا ہے وہ ملا، وہ بھائی ہیں، باپ ہیں، ان کے ہسبینڈ سے، کسی بھی وجہ سے. اور ہم نے جب شروع کیا پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب جیسے کہتے ہیں کہ ان کی اسٹیٹس کو ہے، تو مجھے افسوس تو نہیں، لیکن چلے یہ باتیں ہیں کہ عمران خان صاحب وہ بھی ہمارے مرد حضرات ہیں جو لیڈر جو باقی پارٹیز کی ہیں اور جو بڑے نامی گرامی نام ہے ان کی ضرورت پڑی. لیکن میں پراؤڈلی کہہ سکتی ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی خواتین لیڈر ہیں وہ ان میں سے ایک بھی کسی دوسری پارٹی کی نہیں ہے. تو اصل لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ دوسرے لیڈرز بنا سکتا ہے. تو یہ سارا کریڈٹ میں دوں گی مسز فوزیہ قصوری کو. یہاں پہ آپ کو بہت سارے چیئرمین پی ٹی آئی کے نام نظر آئیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے امپاور کیا خواتین کو، اور میری کس طرح سے میری جیسی خواتین کی، کیونکہ ہم جلسوں میں بھی نہیں جاتے تھے. لیکن آج اگر میں اتنی زیادہ انوالو ہوں اور ایکٹیولی کام کر رہی ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو اس کا کریڈٹ مسز فوزیہ قصوری، سلونی بخاری صاحب نے بیٹھے ہیں، ہمارے پنجاب میں بھی پریزیڈنٹ نفیسہ قطر، جسلین طارق، سارے نام جو کہ وہ نام ہے جو کہ پیورلی اور جینوئنلی پی ٹی آئی ہیں. اس اور جگہ سے نہیں آئے ہوئے، ان کو بنانے میں پی ٹی آئی کا ہاتھ ہے. تھینک یو سو مچ. ہمیں کافی ہے. بہت شکریہ ملائکہ اور رضا آپ کا کہ آپ نے بریفلی پی ٹی آئی کی پالیسیز کے حوالے سے بتایا. اب میں ایڈیشنل سیکرٹری ایجوکیشن کو دعوت دوں گی اسٹیج پر کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ایجوکیشن منسٹر خیبر پختونخوا تشریف نہیں لا سکے تو انہوں نے اس سیمینار کے ذریعے خصوصی طور پہ اپنے نمائندے کو بھیجا کہ وہ کے پی کے گورنمنٹ کی جو انیشیٹو ہے امپاورمنٹ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے وہ ہمیں بتائیں. فوزیہ قصوری صاحبہ، محترم مہمان خصوصی صاحبہ اور یہاں پر موجود خواتین و حضرات، السلام علیکم. میرا نام کیسر عالم ہے، میں ایڈیشنل سیکرٹری ہوں. محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا سے تعلق ہے اور اس وقت اس طرح کی اناؤنسمنٹ کی گئی. منسٹر ایجوکیشن نے عادل صاحب نے آپ حاضرین سے مخاطب ہونا تھا، لیکن تھوڑا بہت بتا سکوں. ڈیٹیل جو سلائڈس ہیں اور انفارمیشن ہے وہ میڈم فوزیہ قصوری صاحبہ کی جو پریزنٹیشن ہوگی ایٹ دی اینڈ آف سب سے آخر میں، اس میں آپ کو سلائڈس کے ذریعے تفصیل بتا دی جائے گی. میں چند موٹی موٹی چیزوں کا آپ لوگوں کو حوالہ دے دوں گا. خیبر پختونخوا میں تحریک پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تو وہ ایک عزم اور ایک مشن کے ساتھ، اور تعلیم پرائیورٹی تھی حکومت کی. زیادہ تر فوکس ہمارا ایجوکیشن پر بھی رہا حکومت کا. اور جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ الیکشن کیمپین میں کئی موقعوں پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے ایک نعرہ دیا تھا کہ ہم یکساں نظام تعلیم لے کر آئیں گے. تو یہی سے ارد گرد چیزیں اور تعلیم کی کوالٹی کو ہم امپروو کریں گے. تو اسی جو چیزوں کو عمل جامہ پہنانے کے لیے جیسی حکومت میں بنی پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف اور ان کے الائنس کی، تو ایک اگر میں ریکویسٹ کروں تھوڑی سی توجہ کی گزارش ہے. ریفارمس کا سوچا گیا جو موجودہ حالات ہیں وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. پاکستان خصوص پختونخوا، بلوچستان اور ایسے اضلاع صوبے سندھ جہاں پر تعلیم کی کیا سچویشن ہے، اسپیشلی پبلک سیکٹر سکولز کی، وہ اس آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے. تو ان گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک بہت بڑے ریفارمز ایجنڈے کا بیڑا اٹھایا، اور اسی کی کڑیاں ہیں جو لوگ ابھی ان کے ثمرات
आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे और जो डिटेल जो चीजें हैं वो स्लाइड्स में मैडम कसूरी साहब की जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपको बता दी जाएगी। क्योंकि आज का ये सेमिनार इज रिगार्डिंग द वुमेन एम्पावरमेंट, तो मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा ऑन द रिफॉर्म्स रिलेटेड टू द रिमूविंग द जेंडर डिस्पैरिटी। हमारे सूबे में इस वक्त टोटल जो तालीमी इदारे हैं वो तकरीबन 60,500 तालीमी इदारे हैं। फीमेल एजुकेशन इस वक्त जो सूरत हाल है हमारे सूबे में, मैं आपको थोड़े से फिगर दे दूं। जो 5 से 9 साल की बच्चियां हैं वो जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और वो इस वक्त स्कूल नहीं जा रही है, उसकी तादाद तकरीबन 9 लाख है। ये मैं अपने सूबे के फिगर्स दे रहा हूँ। और जो 10 से 14 साल की बच्चियां हैं और जिनको स्कूल में होना चाहिए था और जो स्कूल में नहीं है इस वक्त, उनकी तादाद तकरीबन 14 लाख, 1.4 मिलियन गर्ल्स आर आउट ऑफ स्कूल। अब ये इन सूरत हाल को देखते हुए गवर्नमेंट ने, मौजूदा हुकूमत ने, पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो बहुत सारे रिफॉर्म्स स्टेप्स के साथ साथ एक अहम फैसला ये किया कि इस जेंडर डिस्पैरिटी को खत्म किया जाएगा। जो बॉयज और गर्ल्स के जेंडर में जो फर्क है इसको रिमूव किया जाए, खत्म किया जाए। तो एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम था कि जितने भी हमारे फ्यूचर की जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होंगी, जो स्कूल पढ़ेंगे, उसमें खवातीन को 70% का हिस्सा दिया जाएगा बनिस्बत लड़कों के 30% के। तो ये बहुत इनकलाबी कदम था जिससे इंशाल्लाह हम इस डिस्पैरिटी को, जो फर्क है, उसको इंशाल्लाह रिमूव करेंगे। बच्चियों को ये पहली मर्तबा हुआ। आपको शायद बहुत सारे लोगों को पता या जरूर होगा, खवातीन को स्पेशली होगा कि 2011 में अक़वाम मुत्तहिदा ने गर्ल चाइल्ड डे मनाने का फैसला किया हर साल, शायद बहुत होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सूबे में पहली मर्तबा 2011 में अक़वाम मुत्तहिदा ने ये डिसीजन लिया था और 2012 का जो 11 अक्टूबर है वो बच्चियों का दिन मनाया जाता है। पूरी दुनिया में मनाना चाहिए था, नहीं मनाया। 2013 जो पहला साल था मौजूदा हुकूमत का, तो हमने सरकारी सतह पर गर्ल चाइल्ड डे को बच्चों की तालीम की तरफ क्या करना चाहते हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ इक़दाम किए गए, जैसे मैंने कहा कि 37 रेशियो लगा। हमारे कुछ आप ये सामने स्लाइड्स पर देखें, ये हम 2015 तक यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन के टारगेट्स को अचीव करेंगे। बदकिस्मती से हम उस काबिल नहीं हुए अभी तक कि हम इन टारगेट्स को अचीव कर सकें। मौजूदा गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि बाय 2018 inshallah we will be able to achieve 100% universal primary education, and that includes the girls education as well. तो इंशाल्लाह by 2018, और यही वो इक़दाम हैं जो गैप्स हैं वो हम पूरे कर रहे हैं by providing more facilities, more schools to girls, concentrating on the girls education. इस वक्त तकरीबन हमारे सूबे में 10,300 गर्ल्स स्कूल्स हैं जो कि 36% टोटल बन रहे हैं। अब ये है कि सब तक रसाई कैसे हासिल हो जाए, उसके लिए यही रिफॉर्म एजेंडे के तहत एक ऑप्शन है फॉर एवरीवन। लाइक मैं देखता हूँ यहाँ पर वॉलंटियर्स की बात हो रही है, तो आप लोग डिसाइड करें, आप लोग मेहनती लोग हैं, आप काम करना चाहते हैं लेकिन आपके लिए ओपनिंग नहीं है, कैसे है?
तो खैबर पख्तूनख्वा आपको वेलकम करता है। आप एज ए वॉलंटियर गर्ल्स एजुकेशन में इंटरेस्टेड है, बॉयज एजुकेशन में, मैं दोनों जेंडर से मुखातिब हूं। आई मीन देयर शुड बी नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सो आई एम एड्रेस्ड टू बोथ द मेल एंड द फीमेल अलाइक। आप लोग आए एज ए वॉलंटियर, हमारे इदारे, हमारा तालीमी महकमा आपको वेलकम करता है। आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं एज ए वॉलंटियर, यू टीच टू द गर्ल्स, यू टीच टू द बॉयज, आप उसको फैसिलिटीज हैं हमारे बहुत सारे स्कूलों में बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, लाइक बाउंड्री बार्स है, टॉयलेट्स है, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज है, बिजली नहीं है, तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के इश्यूज हैं। As a volunteer, you come forward, we welcome you, और इंशाल्लाह आप हमारे साथ मिलकर, बल्कि आप ये सबका responsibility है। So, as a department, we welcome you, madam, your volunteers are welcome to the province, to the Khyber Pakhtunkhwa हुकूमत और महकमे तालीम को welcome करेगा। मैं एक दो और मैंने जैसे डिटेल में कहा कि हमारी जो फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो स्लाइड्स पर आपको दिखाई जाएंगी इन प्रेजेंटेशन। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने जेंडर एम्पावरमेंट खासतौर पर ख़वातीन की तालीम पर तवज्जो देने के लिए पहली दफा है कि गर्ल्स हमारे सूबे में प्राइमरी से लेकर यानी कच्ची क्लास से लेकर 12वीं तक कुछ अजला में तो उसको स्केल अप किया गया है। हम हर बच्ची को माहाना वजीफा देते हैं ताकि वो स्कूल में अपनी पढ़ाई को जारी रख सके और उनके पेरेंट्स पर बोझ न बन सके। तो हम फ्री किताबों के साथ साथ माहाना उनकी जो है वजीफा भी प्रोवाइड करते हैं। और साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि ये खुशी की बात है कि इस साल हर साल एक रूटीन से एनरोलमेंट कैंपेन चलाया जाता है, लेकिन इस दफा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ये खुद फैसला किया कि सूबे में इस साल जो सितंबर से हमारा एनरोलमेंट कैंपेन शुरू होता है वो अपने हाथ से खुद करेंगे और खुद बच्चों को दाखिल करके इसका इफ्तिताह करेंगे। हमारे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खट्टर साहब, वजीर तालीम, तमाम सूबाई वज़रात, इन सब ने ये कमिटमेंट की कि हम इस कैंपेन को, इस मुहिम को खुद स्पीयरहेड करेंगे, खुद चलाएंगे और इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 10 सितंबर को पेशावर में एनरोलमेंट कैंपेन, और आज मुझे ये बताकर खुशी हो रही है कि जो कल तक के फिगर्स हैं, मेरे पास आज के फिगर नहीं है क्योंकि हम डेली बेसिस हम इनको अपडेट कर रहे हैं, जो कल तक के फिगर्स हैं वो 2,69,000 नए बच्चों को हम स्कूल ला सके। ये वही कैंपेन और वही जो इमरान खान साहब ने शुरू किया है, और इसमें जो खुशी की बात है मैडम वो ये है कि इसमें बच्चियों की तादाद 2,69,000 में से 1,02,369 बच्चियां हैं स्कूल में आ गई हैं। इंशाल्लाह ये कैंपेन हमारा जारी रहेगा जब तक हमारा नेक्स्ट सेशन, एकेडमिक सेशन अप्रैल से शुरू होगा। टाइम नहीं मुझे बार-बार बताया जा रहा है बिकॉज़ देयर आर नंबर ऑफ रिफॉर्म्स एजेंडा। सिर्फ ये बता दूं कि हम हर तालीम के अदर शोबों के साथ साथ सेहत, बाकी के साथ साथ तालीम में इंशाल्लाह जो यकसान निज़ामी तालीम का नारा था वो पूरा करके दिखाएंगे। हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, टीचर्स, उन सब की कमिटमेंट है, गवर्नमेंट की कमिटमेंट है। इंशाल्लाह आप लोगों के ताउन से हम इस बात को इंशाल्लाह पूरा करके दिखाएंगे। इन यकसान निज़ामी तालीम आए, गरीब और अमीर का बच्चा एक जैसा तालीम हासिल करेगा, और इन दुआओं के साथ भी अल्लाह ताला हमारे सूबे को अमन दे, हमारी बच्चियों को सलामती दे, बच्चों को सलामती दे, और एक पख्तूनख्वा को तालीमिया का पख्तूनख्वा बनाए इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। कैसर आलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सेक्रेटरी एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा, खुसूसी नुमाइंदे थे एजुकेशन मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के। आप तमाम ख़वातीन और हज़रात से गुजारिश है कि बहुत ध्यान से इन तमाम लोगों की बातें जो हैं वो सुनिएगा, क्योंकि ये बातें आपके
बातें हैं आप इनको समझेंगे तो ही इनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। हमारे अगले गेस्ट स्पीकर जिनको मैं दावत देने जा रही हूँ उनका नाम है मसूदुल मुल्क साहब और ये सरहद रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो SRDP के नाम से जाना जाता है उसको हेड करते हैं। मसूद साहब आपको दावत दूंगी, आप आए और साथ ही साथ एक जो है वो शर्ट भी रखूंगी कि अपना किताब मुख्तसर रखिएगा। SRSP पिछले 20 सालों से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही है और अगर आप रिमोटेस्ट कॉर्नर्स में जाएं, चाहे वो फाटा के साथ वजीरिस्तान हो या नॉर्थ में आप बलूचिस्तान हो या चतराल हो, तो SRSP जरूर आपको मिलेगा। इन 20 सालों के कुछ तजुर्बात है जो हमने गवर्नमेंट के साथ भी शेयर किए हैं और एक प्रोग्राम पे हम डेवलप कर रहे हैं इस वक्त इस प्रोविंस के लिए। मैं मुख्तसरन जो उसूल उसमें है मैं वो बता देता हूँ। पहली चीज जो है वो अगर हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, ख़वातीन एम्पावरमेंट की, तो सबसे पहली चीज है ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑर्गेनाइज होंगे तो फिर एम्पावरमेंट की तरफ होगी। हमने तकरीबन 25,000 तंजीमों के साथ काम किया है KP में, जिनमें से 1/3 जो है वो ख़वातीन ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन तंजीमों से फायदा यही है कि ये एक आवाज देती हैं आपको, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जो डेमोक्रेसी का एक प्लेटफॉर्म होता है और इसी के जरिए मुख्तलिफ जो इंटरवेंशन होती है कम्युनिटी लेवल पे वो करते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो अगर खैबर पख्तूनख्वा में हम देखेंगे किन डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा चेंज आई है, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में आप रूरल एम्पावरमेंट में सबसे ज्यादा चेंज देखेंगे जहाँ एजुकेशन लेवल बढ़ी है। एजुकेशन के बारे में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो तो ऑलरेडी बयान की गई है। मैं मुख्तसर चंद चीजें जो आप फील्ड में जाएं तो आपको नजर आती है जिससे बड़ा मेजर फर्क पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि अगर स्कूल में जाए तो बाउंड्री वॉल ही हम बना दें तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा, बच्चों की सिक्योरिटी उनको सिक्योर फील करने में। दूसरी चीज ये है कि जो मिसिंग टीचर्स का इशू है, टीचर्स वापस आ जाएं। और तीसरी चीज है जो वॉशरूम जो है स्कूल में, जहाँ अक्सर स्कूल में आपको नहीं मिलती है, तो इन्हीं को यहाँ करें तो जो एजुकेशन के इशू है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तीसरी चीज अगर हम सोशल एम्पावरमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उसके साथ साथ ही जाता है और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में हमें वो चीजें अपनानी चाहिए इस सूबे में जो इंडिजिनस लोगों से ताल्लुक रखते हैं। मसलन माइक्रो फाइनेंस की बात करते हैं तो जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है वो इस सूबे के किसी कोने में नहीं जाएंगे, वो कभी भी नहीं जाएंगे। कॉस्ट बहुत हाई है डिलीवरी की और रिस्क बहुत हाई है डिलीवरी की, इसलिए इंडिजिनस इंस्टीट्यूशंस वहाँ है। अगर आप आए तो मैं आपको ख़वातीन बैंक्स दिखा सकता हूँ जो पेशावर में काम कर रही है, जो करक में काम कर रही है, जो पहाड़ में काम कर रही है, जो डीर में काम कर रही है। वेरी गुड, तकरीबन 170 है। इसी आइडिया को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे जाए। लास्टली जो हेल्थ सेक्टर है जिसमें मैटरनल हेल्थ को आपने DHUs में उसको एक फोकस बनाए जिसके एम्पावरमेंट को बिल्ड करें। तो ये ऐसी चीजें हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को जिससे ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के बेस्ड बिल्ड अप होती है। तो ये बेसिक आइडियाज हैं। लास्टली मैं ये कहूंगा कि अंग्रेजी में कहते हैं कि stronger than the march of the biggest army is an idea whose time has come। तो ये जो सारी चीजें ये आइडियाज हैं जिनके टाइम आ गया है। कोई भी आर्मीज जो है वो इन एरियाज के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, लेकिन इन आइडियाज को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ी चेंज आएगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मसूदुल मुल्क साहब आपका। हमारा प्रोग्राम जेंडर एम्पावरमेंट का ये सेमिनार हम इसको बहुत ही ब्रीफली जो है वो अब आगे लेके बढ़ रहे हैं और मेरे स्पीकर्स मेरे साथ ताउन कर रहे हैं। बहुत कम वक्त लिया आपने, बहुत शुक्रिया। हमारे अगले स्पीकर हैं जनाब मोहतरम आजम सवाती साहब। सर प्लीज स्टेज पे आइए और अपने ख्यालात करें। इंतहाई काबिल कदर ख्वातीन हज़रात, क्योंकि जलसे अरेंज करना अक्सर जलसे अरेंज करना इमरान खान की जमात के अंदर मेरा काम होता है,
میں گراؤنڈ لیول پر جا کر کام کروں. ایک دفعہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کافی اچھے اسپیکر, جس طریقے سے آپ نے سنا خواتین حضرات کو بڑی سیر حاصل باتیں کی. اور پھر جس طرح نصیر صاحب نے باتیں کی, ایک اسپیکر نے بڑی تفصیل سے سارے جینڈر امپاورمنٹ کی جو تفصیل بیان کی, تو بار بار کہہ رہے تھے خدا کے بندے میرے لیے بھی چھوڑ. ظاہر ہے کہ نصیر صاحب سب کچھ کہہ چکے, اس لیے میں ایک اور زاویہ سے جینڈر امپاورمنٹ کی بات کروں. ایک مقولہ ہے جو پرشین میں ہے کہ ہر خود وہ پسند نہیں بدی گرام و پسند. ہر وہ چیز جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کریں. آئیں میں اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں کہ کیا وہاں پر جینڈر امپاورمنٹ ہے یا نہیں. میں نے جس خاتون کو اپنا رفیق حیات چنا اس کی تعلیم صرف پرائمری تھی, لیکن جب انوائرمنٹ اس کو ملا تو میرے گھر میں جانے کے بعد سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا کہ اس نے کالج تک کی تعلیم حاصل کر کے میرے شان و شان نہ صرف ایک سیکٹری کی حیثیت سے, ایک اچھے وہاں کے پالیٹیشین کی حیثیت سے اس نے اپنا رول پوری جتنی ہمارے مسلمانوں کی آبادی تھی اس کے اندر ادا کیا, جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہی مقولہ آتا ہے کہ behind every successful man there is a great woman. میں دوسری بات کروں گا اپنی اس بچی کی جس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور خدا تعالیٰ نے پہلی مرتبہ کسی مسلمان خاتون کو اسٹیٹ آف لوزیانہ میں مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اس کو ایڈوائزرشپ کیتھرین برینکو کی گورنرشپ کے اندر 2004 کے اندر ملی, اور جس نے وومن امپاورمنٹ کے لیے اور ہاؤسنگ کے لیے بہت بڑا کام کیا. اور آج اس وقت بھی ہیڈی میں کام کر رہی ہے جہاں پہ وومن امپاورمنٹ کے لیے بہت بڑا کام ہے. اور میں بحیثیت ایک عادت یہ کیوں پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے پہلے جو اس نے آ کے کام کیا, میں نے ٹاٹ کے اسکول میں اپنی تعلیم حاصل کی, تو سب سے پہلے اس ٹاٹ کے اسکول جہاں پرائمری میں نے تعلیم حاصل کی تھی اس کو اس نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہائی اسکول خود اپنے جیب خرچے سے بنایا. اور پھر سب سے بڑی بات تھی وومن امپاورمنٹ کی جو اس کی اسی علاقے کے اندر گرلز ہائی اسکول جہاں پر ٹیررسٹ جو ہیں ہمارے اسکولوں کو تباہ کر رہے ہیں, وہاں پر ہائی اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول جو ہے اس نے اسٹیٹ آف دی آرٹ وہاں لائبریری اور کمپیوٹر سسٹم کے بنا کے ملک پاکستان کو دیا, اور اپنی جو انڈیٹڈ تھی اس ملک کی مٹی کے ساتھ اس نے وہ امپاورمنٹ جو ہے لے کے آیا. میں اختصار سے کہوں گا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر چونکہ وکالت کا پیشہ ہے, یہی مجھے آگے لے کے جا رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اسٹیپولیٹڈ ہے جینڈر ایکولیٹی اس کی گارنٹی ہے, اور اس کی گارنٹی کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پر اس کے جتنے شعبات ہیں اس میں آپ کے چائلڈ پروٹیکشن ہے, آپ کی میرج ہے, آپ کا پورا فیملی کا سسٹم ہے, پورا بلکہ سوشل سٹرکچر ہے. اگر اس کی گارنٹی آپ کے آئین نے دی ہے تو پھر آج سے 10 سال پہلے بہت بڑا کنونشن یہاں پہ ہوا تھا وومن امپاورمنٹ پہ, اور آج میں جن کی قیادت جو دو خواتین کی قیادت میں اور یہاں بے شمار ایسی میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں جن سے میں اس روشنی کو تلاش کرتا ہوں, اس علم کو تلاش کرتا ہوں. اسی لیے اس پارٹی میں کارکن کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنے پہ فخر محسوس کرتا ہوں, اس لیے کہ میری بہنیں اس کام کے اندر اس علم کے اندر مجھ سے بہت آگے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں کیچ کر اس جگہ تک پہنچوں جہاں پر ان کے قدموں کے نشان انشاءاللہ تعالیٰ مجھے ترقی کی راہ میں ہم لے کے جائیں. میں یہ کہتا چلوں کہ سینٹ میں 9 سال رہنے کے بعد جتنی بار بھی آپ کو اس سینٹ کی کارروائی کی تقاریب کو دیکھیں گے, خدا کا فضل ہے کہ ایک ماڈریٹ کی حیثیت سے, ایک اسلام پسند کی حیثیت سے میں نے دین کو, پاکستان کو, وومن کی امپاورمنٹ کے لیے نہ صرف وہ ایکٹ بنایا جو آج آپ کی کرمینل پروسیجر کا پینل کوڈ کا آپ کا حصہ ہے, جس کے اندر ورک پلیس کے اندر اگر خواتین ابیوزز اور ہراسمنٹ ہوگی تو مجرم کو 3 سال قید کا شکست اور 5 لاکھ روپیہ جرمانہ کی ہوگی,
اس میں میرا کلیدی کردار جو ہے سینٹ کی کمیٹی کے اندر اور سینٹ میں باقاعدہ طور پہ ادا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ افرمیٹو ایکشن جس کی کیسر صاحب نے بات کی اس لیے کہ میرے کیبنٹ کے صوبے کا چیف ایگزیکٹو عمران خان کی ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ 70% اور 30% آپ نے یہ سنا کیوں ہم اپنی بچیوں کو لے کے آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا ملینیم ڈیولپمنٹ گول یہ کہہ رہا ہے کہ افرمیٹو ایکشن کے مطابق جو کانسٹیٹیوشنل ورڈ ہے اور اس میں ڈسکرائب کروں تو میرا وقت ختم ہو جائے گا. افرمیٹو ایکشن کے مطابق ساری جتنی بھی آپ کی جینڈر ڈسپیرٹی ہے اس کو پیرٹی پہ لانے کے لیے آپ نے اپنے ایسے ضابطے قوانین اس پر عمل کرانا سب سے بڑی بات ہے جس کے اندر آپ پیرٹی پہ جو ہے لے کے آئے. میں جتنے بھی یہاں پر ایم این اے یہاں پہ بیٹھے ہوئے پارلیمنٹری اسپیشلی ایپلیکیشن الگ کرتے ہوئے آپ نے انیکٹمنٹ نہیں کرنی ہے اور آپ نے انشیور کرنا ہے کہ اوور سائٹ آپ پرووائڈ کریں گے ایگزیکٹو کے اوپر اس میں انشیور کرنا ہے کہ وومن کا کوٹا وومن کے حقوق جتنے بھی ہے میری اس کو آپ نے انشیور کرنا ہے کہ تحت عمران خان کے اس ویژن کی موجودگی کے اندر جو ہے وہ آگے جائے. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے اور اس رسپانسبلٹی کو آنر کرنا یہی عمران خان کی چینج ہے جس کا میں بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ اعظم سواتی صاحب آپ کا. میں اپنے میڈیا کے جو ہمارے مہمان ہیں ان سے گزارش کروں گی کہ آپ نے بہت ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. اب یہ تقریب جو ہے وہ اپنے اختتام کے قریب ہے. تھوڑا سا اور آپ کا تعاون ہمیں درکار ہے. آپ یہاں پر موجود رہیے گا. ہم جانتے ہیں کہ یہ وقت بہت تیزی سے گزرا. اب میں دعوت دینے جا رہی ہوں آج کی تقریب کی مہمان خصوصی جناب محترمہ مسز عامرہ پرویز خٹک کو کہ وہ آنے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. تھینک یو ایوری ون. پی ٹی آئی کا اور فوزیہ کسوری کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے انوائٹ کیا یہاں پہ اور مجھے موقع ملا کہ میں سب کچھ سن سکوں کہ کیا ہو رہا ہے میرے پاس. جینڈر امپاورمنٹ جو ہے بہت ضروری ہے ہر معاشرے کے لیے. اگر ہر پہ آپ کی تربیت صحیح ہوگی, آپ کی ایجوکیشن ہوگی, یو بیکم اے اسٹرانگ نیشن. ماں جو ہے وہ ایجوکیٹ کرتی ہے اپنی اولاد کو. اگر ماں ایجوکیٹڈ نہیں ہوگی تو اولاد کس طرح صحیح ہو سکتی ہے. تو ہمیں زیادہ زور جو ہے وہ عورتوں کی ایجوکیشن پہ اور امپاورمنٹ پہ دینا چاہیے کیونکہ ہمارے ملک میں یہ چیزیں جو ہے بہت کم ہیں اور اب ہمیں انٹروڈیوس کرنی چاہیے. اور ماشاء اللہ سو نائس ٹو سی کہ اتنے لوگ یہاں پہ جو ہیں والنٹیئر کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے. Good luck to all of you and I'm always there to help all of you. Girl child program जो शुरू कर रहे हैं आप CM enrollment drive जो है 60% एजुकेशन का बजट जो है हमारा उस पे जाएगा. एंड स्किल डेवलपमेंट जो है वो हम लड़कियों की करना चाह रहे हैं रोजगार स्कीम से ताकि वो कुछ सीखें और वो डिपेंडेंट ना हो कभी भी किसी पे. और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर्स जो है हमारे यूसी लेवल पे शुरू हो रहे हैं एंड विद इन 5 years इंशाल्लाह वो पूरी तरह एस्टैब्लिश. थैंक यू सो मच. मिसेस आमरा परवेज खटक आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज की महफिल में आई और अपने ख्यालात का इजहार किया. अब मैं दावत दूंगी कि जिनकी वजह से कि जिन्होंने ये खूबसूरत सेमिनार आपके लिए अरेंज किया खवातीन के हवाले से हमेशा काम करती हैं, बहुत बढ़ चढ़ के काम करती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में
خواتین کی اگر نمائندگی کی بات کی جائے تو یہ ایک ایسا نام ہے کہ تمام خواتین یا مسلمان موقع سے ایک ہی نام میری جناب محترمہ فوزیہ قصوری صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ سب لوگوں کا اتنی محبت سے میرے اتنی ساری بہنیں بھائی ہمارے بچے اتنی دور دور سے آئے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور باتیں تو ماشاء اللہ اتنی ہو گئی ہے مگر میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی سب سے پہلے کہ ماشاء اللہ جو میری اتنی ضرورت اور ماشاء اللہ خوش قسمت ہے ہماری پنجاب کی ویمن ڈے جس کو سلونی جیسی صدر ملی ہے. سلونی میں کس کس کا نام لوں آپ سب لوگ اسپیشل ہے. وہ ڈاکٹر مہر روحانی سامنے بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے کے اندر ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو. نیلوفر دورو مردان سے آئی ہیں. میری تمام جو یہ جہاں کی لوکل ٹیم ممبرز ہیں پلیز سیمی ایس ڈی رائٹ ہیئر member of the core team of gender empowerment اسلام آباد میں ہوتی ہے. اتنا کام کیا بڑا آگا یہاں کھڑی ہوئی ہے. بہت تمام جو پہلے دن سے جو لوگ اس پروگرام پہ کام کر رہے ہیں اور آمنہ سلمان اور ارسلان آپ کدھر ہے؟ یہ بچہ ارسلان یونس ہمارے ہے ماشاء اللہ. تمام ریسرچ اور پروگرام کے اوپر ہمارے تمام سوشل میڈیا پر ارسلان سنبھالتے ہیں اور بہت محنت اور جذبے سے کرتے ہیں ماشاء اللہ. میری بہن اسما کھٹر سامنے کھڑی ہے اور آپ سبھی لوگ کاشمین آئی ہوئی ہیں اور آسیہ آئی ہیں مظفر آباد سے. آسیہ ماشاء اللہ لوئر ہے ہماری تحریک انصاف کی. میں آپ کو بتاؤں میں 17 سال تک ویمن ڈے کی صدر رہی ہوں. میں اب نہیں ہوں مگر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے صدر سے زیادہ آپ سب خواتین میرے دل میں ہو. میں آپ سب سے بے انتہا محبت کرتی ہوں. اور یہ سب بہت اسپیشل ہے جو یہاں موجود ہے. عثمان راجہ فیصل آباد سے آئیے, شبنم مانیے, کون بڑھیا کریے سب کریے. تھینک یو. پلیز آپ کا راجہ اسلام آباد سے بہت شکریہ. بہت گرمی میں ہماری رابعہ اختر بھی یہاں موجود تھی مجھے ملی تھی ابھی. بہرحال اب ہم کو جینڈر امپاورمنٹ کی بات کریں کیونکہ یہ ہمارے بھائی حضرات بور ہو رہے ہیں. یہ کہہ رہے بہت ایموشنل معاملہ ہو رہا ہے تو کین وی ہیو سم اسپیس. ذرا میں ان کو نیچے اٹھا دیں. بیٹھے اب اگر آپ نے پروگرام کے بارے میں بات کریں بہت سیریس سبجیکٹ ہے اور یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس میں مجھے پتا ہے کہ نہ صرف ہماری تمام بہنیں ہمارے بھائی جو لوگ ہیں. آپ نے اعظم سواتی صاحب کی بات سنی, آپ نے نصیب الرحمان صاحب کی گفتگو سنی, آپ نے دیکھا یہاں ماشاء اللہ ڈاکٹر نثار شاہ میرے سامنے بیٹھے ہیں. یہاں پر ہمارے ایم این اے پشاور سے عمران کھٹر صاحب موجود ہیں, مجھے نظر نہیں آ رہے. بہرحال
बहुत लोग बैठे, बहुत शुक्रिया। बाकारी साहब आए हैं, हमारे भाई पिंडी से आए हैं। देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वो जमात है, ये वो प्लेटफॉर्म है जो इमरान खान का मिशन, जो इंसाफ और हक का विजन है, वो उस तबके के लिए पुरजोर तरीके से इमरान खान ने हमेशा आवाज उठाई जो हमारे माशरे के मार्जिनलाइज ग्रुप्स होते हैं। ये ख़वातीन होती हैं, ये नौजवान होते हैं, और लैक ऑफ रिसोर्सेज, वो मौके, वो अपॉर्चुनिटीज जो नहीं मिलती है ख़वातीन को, हमारी बच्चियों को तालीम के हवाले से, एक पॉजिटिव गुड हेल्थ केयर सिस्टम होने से, इदारे मजबूत होने से, वो तमाम तर चीजें जो माशरे में ख़वातीन और नौजवानों को, जो हमारी नई नस्ल होती है, इनको जरूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी इयर्स किसी हुकूमत ने कभी इस पर गौर नहीं किया, कभी इसको जरूरी नहीं समझा। जब हम भी बड़े हो रहे थे, कभी मैं भी यूथ होती थी, मेरा भी दिल चाहता था कि कहाँ पर कोई यूथ के लिए आवाज उठाए, कोई नहीं उठाता था। और ये वही तमाम हुक्मरानी जमातें थी जो किसी न किसी फॉर्म में हर दफा बारियां ले लेके हुकूमतों में रहती थी। मगर आज पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एक एजेंडा पे प्रायोरिटी है कि पाकिस्तान की 50% से ज्यादा आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, और ख़वातीन बहुत अहम हो गई है, ख़वातीन की बहुत जरूरत है। हमारे नौजवान यूथ वो मैप पे आ गए हैं, वो रडार पे आ गए हैं तमाम सियासी जमातों के, और ये क्रेडिट जाता है वाहिद और वाहिद इमरान खान। उन्होंने ये चीज, ये हकीकत है कि इमरान खान ने वो प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से ख़वातीन और हमारे नौजवान ये महसूस करें कि हमारी आवाज यहाँ से उठेगी तो हमारी आवाज सुनी जाएगी। अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज हुकूमत मिली। खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस में, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोविंस है, दहशतगर्दी, टूटे हुए इदारे, एक कमजोर मईशत और एक बिल्कुल खाली खजाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में आया। जो खैबर पख्तूनख्वा या किसी भी पाकिस्तान के और सूबे के अंदर बर्बादी और मुसीबतें हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई हाथ नहीं है, इमरान खान का दहशतगर्दी में कोई हाथ नहीं है। ये तो सवाल उन लोगों से पूछने के जिन्होंने हुकूमतों में रहे और जिन्होंने हमारे मुल्क को बर्बाद किया। मगर 3-4 महीने का जो एक कम अरसा अभी गुजरा है खैबर पख्तूनख्वा में, बावजूद इतनी दहशतगर्दी और इश्यूज के, सिक्योरिटी इश्यूज इतने ग्रेव है, उसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में रिफॉर्म्स की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। किस चीज की जरूरत है, किस किस्म की तालीम चाहिए, क्या हेल्थ केयर चाहिए, क्या हमें इदारे चाहिए, ये आपने हमारे जो सारे तमाम मुअज़्ज़िज़ स्पीकर्स ने, आपने उनसे ऑलरेडी सुना कि किस किस चीज की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर, और हम और आप भी जानते हैं। जेंडर एम्पावरमेंट जो है, दिस इज अबाउट outdoing the discrimination between and the gender imbalance in Pakistan. इसका मतलब ये नहीं है कि हम माशरे के अंदर मर्दों के खिलाफ हैं ख़वातीन, हम किसी के खिलाफ नहीं है, मगर इसका मतलब ये जरूर है कि हम चाहते हैं कि ख़वातीन को हमारे माशरे में वो रुतबा, वो स्टेटस, वो रोल जरूर मिले जिसकी वो पूरी तरह हकदार है और केपेबल है। आप लोग काबिल हैं, आप में जज्बा है। अल्लाह ताला ने औरत को इतना मजबूत बना के जन्नत ला के मार के पैर के नीचे रख दी, इससे ज्यादा और क्या ताकत हो सकती है। जरूरत इस चीज की है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश नसीब है कि हमें बहुत ही बहादुर, करेजियस और ईमानदार लीडर मिला है इमरान खान की शक्ल में। ये इमरान खान का विजन है जिससे हम सरशार होकर आगे निकलते हैं। हमने आपने जेंडर एम्पावरमेंट के लिए इस सेमिनार का मकसद एक ये भी था, हमारी पूरी प्रेजेंटेशन थी, मगर टाइम इतना हो चुका है कि मैं आपको वो स्लाइड आप चला दें, चलते रहे, आप लोग देख लीजिए, हम इसके ऊपर पूरी तरह बात नहीं कर सकते। मगर मकसद इस प्रोग्राम का ये था कि गोइंग फॉरवर्ड हमारे हमें वॉलंटियर्स चाहिए। हमारा एक जो जेंडर एम्पावरमेंट का एजेंडा है उसमें हम 3 इश्यूज के ऊपर, आप सबके पास ये कागज होगा, ये फ्लायर, इसके ऊपर वो 15 चीजें लिखी हैं जो प्रायोरिटी है हमारे लिए। विमेन एम्पावरमेंट, औरतों को तालीम के जरिए
प्रॉपर हेल्थ केयर, मईशी तौर पर माशी तौर के ऊपर खवातीन को एम्पावर करना, कर्जे देना, उनको वोकेशनल सेंटर्स में वो ट्रेनिंग देना, उनको फैसिलिटेट करना, उनको उन सेमिनार्स में भेजना, वो वर्कशॉप्स कराना, उनके मोहल्लों में जाके उनसे हम सब ने आपने हमने जाके बात करनी है, हमें उन्हें बताना है कि क्यों जरूरी है कि वो अपने बच्चियों को स्कूलों के अंदर दाखिल करें, क्यों जरूरी है कि वो तालीम की तरफ बढ़े, क्यों सफाई जरूरी है, सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ किसी को ये बता देना कि भाई दिन में 2 दफा हाथ धो लो, बहुत से गरीबों के पास तो पानी भी मैसर नहीं होता है, मगर हमने ये चीजें पैदा करनी है। हमने वो आप देखेंगे इसके ऊपर लिखा है विमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, जेंडर इनइक्वालिटी जो है उसको खत्म करने की कोशिश करनी है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने रिवाइज करके 2018 तक रखी है। 2018 तक इंशाल्लाह सबसे बड़ा मिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये कि 30 लाख बच्चे जो स्कूलों में नहीं है, इंशाल्लाह वो बच्चे स्कूलों में जाए। और इसमें आप सबकी और आप भाइयों की भी, बच्चों की हमें बहुत सब जरूरत है। हम सब वॉलंटियर्स हैं, हम सब कारकुन हैं एक कॉज के, हम इमरान खान के वो सपोर्टर्स हैं जो हमने खान साहब के मैसेज को घर घर तक पहुंचाना है और हम पहुंचा सकते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं दूर है। बिल्कुल एक बात हमारे भाई ने सही कही थी, साहब ने शायद कही थी कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है, हमें ऑर्गेनाइज होना है, हमें वो टीम्स बनानी है और उसमें आपने हमारे साथ चलना है, हम और आप टीम बनेंगे। ये प्रोग्राम इस वक्त इब्तिदा हम इसकी खैबर पख्तूनख्वा से इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ हमारी हुकूमत है, हमें एक्सेस है, हमें वहाँ जाने में फैसिलिटेट कर सकेंगे हमारे लोग। मगर ये प्रोग्राम सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं, इमरान खान एक नेशनल लीडर है, वो पूरे पाकिस्तान के लीडर है और इंशाल्लाह उनके हर प्रोग्राम को लेके हम पाकिस्तान के हर सूबे में जाएंगे। जहाँ जहाँ हमारी माशाल्लाह खवातीन है, यूथ है जो इस प्रोग्राम का हिस्सा है, हमारी जो प्रोविंशियल सदूर है वो इसको लीड करेंगे अपने अपने सूबों में इस प्रोग्राम को और हम इन चीजों को लोगों तक पहुंचाएंगे। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है और सेफ ड्रिंकिंग वाटर। देखिए पानी तो वैसे ही एक सख्त जालियां है, किसी पे भी जो भी पानी पीता है और जिसके दिल को ठंडक पहुंचेगी वो आपको दुआ देगा। हमने जरूर वो फंड रेजिंग करनी है, हमने वो टीमें बनानी है जो जाएंगे, जो रिसर्च जो हमें हमारी हुकूमत बताएंगे, हमने उन मोहल्लों के अंदर इंशाल्लाह सेफ ड्रिंकिंग वाटर मुहैया करना है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाएंगे। आपको पता है मेहमान साहब ने मुझे ओवरसीज पाकिस्तानी की जो जिम्मेवारी सौंपी है, मैं बहुत ओवरसीज जाती हूँ क्योंकि मैं शौकत आलम की वजह से 18 साल से 22 साल से कर रही हूँ। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो बहुत मदद करना चाहते हैं, जो रियली इन कामों में हमारा साथ देना चाहते हैं, मगर वो ये देखना चाहते हैं कि हम कुछ कर भी तो नहीं होना। तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह हमें कोई हुकूमत से पैसा नहीं चाहिए, हमें पीटीआई पार्टी से पैसा नहीं चाहिए, हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम्स के लिए आजम भाई आपकी सरपरस्ती और गाइडेंस में खुद पैसा रेज करेंगे, हम अपनी हुकूमत को फैसिलिटेट करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। हम सब वॉलंटियर्स हैं और हमारा काम है कि हम बहुत अच्छे काम करें ग्रास रूट लेवल पे और जाके अपनी पार्टी को हाईलाइट करें जो हमारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं कि लोगों को समझ में आए कि क्या हो रहा है। इसका बहुत एक इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है जो मैं आपके सामने आज रखना चाहती हूँ, मैंने आतिफ खान साहब जो हमारे सूबाई एजुकेशन के वजीर हैं वो और शौकत यूसुफ जो हेल्थ के वजीर है वो आ नहीं सके कि गवर्नर हाउस में अर्जेंट मीटिंग हो रही है, इस वक्त उन्होंने माजरत की, मगर मैंने उनसे ये बात डिस्कस की थी, ये है अडॉप्ट अ स्कूल पॉलिसी। ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त 28,000 पब्लिक स्कूल्स हैं, यानी जो पब्लिक सेक्टर में आते हैं गवर्नमेंट की स्कूल्स, इनमें से बहुत छोटा फिगर है मगर 350 स्कूल्स फंक्शन नहीं कर रहे, खाली पड़े हैं या दीवारें टूटी हुई है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो वहाँ पर पानी नहीं है, वॉशरूम की फैसिलिटीज, फर्नीचर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो अडॉप्ट स्कूल पॉलिसी है, प्लीज ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सबने आगे जाके भी ये बात करनी है, 2-2 के ग्रुप में, 4-4 के ग्रुप्स में खवातीन, आप लोग स्पेशली मेरी बहनों से अपील है
کہ آپ لوگ ایک ایک اسکول کو وہ ہمیں اسٹیٹسٹکس دیں گے، ایجوکیشن منسٹری ہمیں بتائے گی، ہم ان اسکولس کا خود بھی جا کے سروے کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. آپ لوگ ایک ایک اسکول کو اڈاپٹ کیجیے کہ یہ میرا اسکول ہے، جیسے کوئی کسی بچے کو اڈاپٹ کرتا ہے. آپ یقین کیجیے آپ کو ایک بیوٹیفل فیلنگ ہوگی کہ ایک چیز آپ کی ہے، آپ اس کی اونرشپ لے رہے ہیں، آپ اس اسکول کو فنکشنل کریں گے، اس کو اس قابل کریں گے کہ اس کے اندر ایسے غریب خاندانوں کے بچے آ کے کرسی پہ ٹیبل پہ بیٹھ کے پڑھائی کریں گے، پنکھا اوپر سر پہ لگا ہوا ہوگا سیڑھی کے اندر. اللہ تعالیٰ آپ سوچیے آپ پہ کتنی رحمت آئے گی اس تمام کام کی، مگر اس کو اندر سے فیل کریں، اپنے اندر سے فیل کریں. الحمدللہ ہم اتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں اتنا بحث کیا، اتنے بیوٹیفل خواتین یہاں ساری بیٹھی ہیں ایک سے پیارے پیارے کپڑوں اور شکلوں کے اوپر، مگر اس سے آگے بڑھ کے تھوڑا سا ہم یہاں کوئی بات یہی ہے ہمارے لیے، لیٹس جسٹ ڈو اٹ، اپنے دل میں ڈالیں گے یہ کام ہمیں کرنا. ایک ایک اسکول کو اڈاپٹ کریں، آپ کے کتنے جانے والے لوگ ہیں، آپ ان خواتین کو آگے جانے کے لیے اتنے سارے. اور بھائی میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتی ہوں، جہاں جہاں نسیم بھائی آپ جہاں جہاں لوگوں کو جانتے ہیں، بھائی آپ جدھر جانتے ہیں، کہیں 5 6 مل کے کہیں ایک اسکول کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں، اس کی باؤنڈری وال بنوائیے، اس میں کڑھائی کروا دیجیے، اس میں تھوڑا اسکول ہی کیا ہے، 2-3 کمروں کے تو اسکولز ہیں، آپ اس کے اندر جھولے بنوائیے. ہماری خواتین نے اس میں کنٹریبیوشن کیا کہ جی وہاں پر ہم اسکولوں کے اندر سلائڈز اور جھولے ڈالنا چاہتے ہیں. اسکول کی انوائرمنٹ ایک اتنی پیاری خوشگوار جگہ بنائیے جہاں بچے اپنے دل سے خوش ہو کے جائیں. ماں باپ اگر گھر سے بچوں کو نکالیں، ہماری حکومت ان کو بہت انسینٹیوز دے رہی ہے، تو وہ خواتین وہ جو مانیٹرز کر رہی ہیں اسکولس کو، ان کو بھی بائی دا وے پیسے دیے جا رہے ہیں ایز انسینٹیوز. اور جو غریب گھرانے کی بچیاں ہیں ان کے گھر والوں کو ہر بچے کے اوپر فی بچہ حکومت خیر دے رہی ہے about I think 300 or 400 rupees کچھ پرسن پر چائلڈ، کہ ان کو انسینٹیو ہو کہ جی آپ کے بچے اسکول میں آ رہے ہیں، ایک اچھے خوشگوار ماحول میں رہتے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب دیکھیں ہمارے بچے کتنے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تو اگر ہم ان کے بارے میں بھی سوچیں اور ہم کہیں گے نہیں بس یہ میرا پروجیکٹ ہے، آپ لوگ آج یہاں سے اٹھے اور اپنے گھر جائیں تو ضرور یہ اپنے سے فیصلہ کریں کہ مجھے کچھ پازیٹیو کرنا ہے فار دی پور ڈیپرائیوڈ پیپل آف پاکستان. یہی تحریک انصاف کا مشن ہے، یہی تحریک انصاف کا موٹو ہے. اور بلیو کیجیے کہ اسی امید پہ ہم جیسے جو شروع میں سے خواتین پی ٹی آئی کے اندر تھے، ہم اسی جذبے سے اس پارٹی کے اندر تھے کہ ہم اس میں وہ تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں جو خانیہ میں خواب دکھایا ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. مگر اگر ہماری زندگی میں بھی نہ پورا ہو، ہمیں اقتدار تو کرتے نہیں، ہمیں کام تو کرنا ہے. اور ہمارے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ہمارے پاس ہماری حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اور ماشاءاللہ پرویز خان صاحب کی قیادت کے اندر ایک بریلینٹ انہوں نے ٹیم پٹ فارورڈ کی ہے. دیکھیے کوششیں کر رہے ہیں، باوجود دقتوں کے ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہر چیز ہماری بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ہماری بہت ہمیں بھی امپروومنٹ کی ہر چیز میں ضرورت ہے. مگر جتنی گنجائش ہے، جو ریسورسز اویلیبل ہیں، جبکہ نیڈس اتنے انارمس ہیں، اتنے سارے نیڈس ہیں کہ پاکستان میں کسی چیز میں ہاتھ ڈالو تو it's like opening a Pandora's box because it's nothing but full of problems, so many problems, but we can certainly help. وہ کہتے ہیں نا all of us, each one of us who is present here, we can do little things for big causes, but let's do it. چھوٹی سی چیز بھی لو اور کیئر سے آپ کریں تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ راستے کو ہموار کرتا ہے اور the doors open، دروازے کھلتے ہیں اور لوگ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو رزلٹ نظر آنے لگے گا اور آپ اتنا بلیسڈ فیل کریں گے. اس کے اندر ہم ہیلتھ اویئرنیس کیمپینز، ہم وہاں پر میڈیکل کیمپس لگائیں گے، اور جیسا نسیم الرحمان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہم کیمپس وہاں پر ڈاکٹرس کے لیے کرنا چاہتے ہیں، فیسلٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں، کہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت ان کو وہ مواقع فراہم کرے کہ وہاں پر ڈاکٹرز آ سکے. ساری دنیا میں آپ کو بتاؤں 7 سے 8 لاکھ اوورسیز پاکستانیز ہیں جو ووٹرز ہیں. آپ یقین کیجیے کیا یورپ، کیا یو ایس ہے اور کیا مڈل ایسٹ کے میں جگہوں میں بہت پی ٹی آئی کے لیے گئی ہوں، 90% پیپل آر ان پاکستان میں نکلتا. وہ سب عمران خان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. ٹرانسپیرنسی ہمارے جو اکاؤنٹس، جو ہمارے طور طریقے ہیں پارٹی کے، جو ہماری بکس مینٹین ہوتی ہے، جو ہماری پارٹی میں کام ہوتا ہے، جہاں اسپینڈ کیا جاتا ہے، لوگوں کو عمران خان کے ویژن میں یقین ہے، تو لہٰذا لوگ پیسہ دینے کو تیار ہیں، مگر ان کو کام دیکھنا ہے.
हम बनते हैं वो टीम, हम जाएंगे उन मोहल्लों में, हम वो दिखाएंगे। हमारी तो पूरी प्रेजेंटेशन की जो मैं आपको नहीं दिखा सक रही हूँ, मगर हम उन स्कूल्स को बिफोर एंड आफ्टर हम उनकी तस्वीरें लेंगे कि ये इस स्कूल का ये हाल था और अब ये हाल है। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये कितनी ब्यूटीफुल चीज चलेगी। इस चीज में हमें गाइड करने के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग है, एनरोलमेंट कैंपेन है, मदर चाइल्ड हेल्थ केयर के प्रोग्राम्स हैं, पॉवर्टी एलिमिनेशन है कि खवातीन को जो कमजोर है खवातीन उनको, देखिए पाकिस्तान में ये हकीकत है कि 63% जो लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में है वो खवातीन है। यानी मर्द कम काम करते हैं फील्ड में, हम समझते हैं कि खेती बाड़ी जो है मर्दों का काम है, औरतें करती हैं, मगर हालांकि कानून है कि औरतें लैंड ओन कर सकती हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, इदारे कोई नहीं है जहाँ इसको चैलेंज किया जाए, इस चीज को मुमकिन बनाया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लोकल बॉडीज और लोकल गवर्नमेंट की पॉलिसी है और प्रोग्राम है वो भी इंतहा मस्बत प्रोग्राम है, और उसका आइडिया यही है कि असल ताकत जो है वो ग्रासरूट लेवल से शुरू होती है। जब इंशाअल्लाह आप अपने यूनियन काउंसिल्स में, अपने मोहल्लों में, अपने मुअज़्ज़ज़ गांवों के अंदर जब आप लोगों को एम्पावर करेंगे, आप उनको लाएंगे डिसीजन मेकिंग फोरम्स के अंदर, और खास करके खवातीन से मेरी अपील है कि बढ़ चढ़ के जिसको आप मेरे यहाँ पे लोग कहें कि जी लोकल बॉडीज के इलेक्शन आ रहे हैं, आप लोग हिस्सा लें ताकि आपकी एक रियल वॉइस हो सके कम्युनिटी में, आपके मोहल्ले में, फिर उससे बढ़ के आगे डिस्ट्रिक्ट में, फिर उससे बढ़ के प्रोविंस में। आप लोग हुकूमत मेन स्ट्रीम डिसीजन मेकिंग जो पार्टीज की है आप उसमें शामिल हो, और फिर आप हुकूमतों में शामिल हो। और इंशाल्लाह इमरान खान ने ये बात पहले भी कही थी, और उनका भी ये विजन है कि अल्हम्दुलिल्लाह बेशक ये अच्छी बात है कि आज पार्लियामेंट के अंदर बहुत सी खवातीन हैं और सेनेट के अंदर मौजूद हैं, मगर खान साहब ने हमेशा ये चाहा कि ये भी जो खवातीन पार्लियामेंट में पहुंचती हैं ये एक इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू पहुंचे। इनका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि कोई किसी का बहन हो या भाई हो तो ही वो पार्लियामेंट के अंदर, या कोई खातून दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कुछ हो, लोगों को अपने मेरिट पे पहुंचना चाहिए। और ये मेरिट क्योंकि जो खवातीन काम करती है मैं समझती हूँ ये उनका हक, ये उनका हक है कि वो पहुंचे। मुझे बहुत खुशी है कि ऑनेस्टली कहाँ चली गई नफीसा खट्टर, उन्होंने मेहनत माशाअल्लाह सही जगह पहुंच गई। मुझे खुशी इस बात की होती है कि जहाँ इतने सारे लोग हैं, मैंने इनके साथ देखा है इनका काम, जिस तरह इन्होंने अपनी टीम्स यहाँ तंजीम बनाई है, जिस तरह इन्होंने काम किया है। She actually represents the people because she has worked with them. तो इसी किस्म की और की खवातीन और माशाल्लाह बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियंस हमारे मौजूद हैं, मगर इस प्रोसेस को थोड़ा बेहतर बनाने की, इम्प्रूव करने की बहुत जरूरत है। और खवातीन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जब आपका रोल मजबूत हो सकता है जब आप एक प्रोसेस के थ्रू आए, आपके पीछे आपका काम हो, आपके पीछे आपका हल्का हो। और मैं बिल्कुल, मैं यूएन के साथ भी मैंने जब थोड़ा बहुत काम किया, मैंने हमेशा हर फोरम पे ये रिक्वेस्ट की कि तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि खवातीन को वो एटलीस्ट 25% डायरेक्ट इलेक्शन में सीट्स दें, उन्हें टिकट्स दें खवातीन, उन्हें लड़ने दें, उन्हें एक प्रोसेस के थ्रू आने दें। जो खवातीन आ सकती है उनको जरूर थ्रू एन इलेक्शन आना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप एक इलेक्शन के थ्रू आते हो तो आपका एक हल्का होता है, आपकी एक जिम्मेदारी होती है, आपकी लॉयल्टी आपकी पार्टी की लीडरशिप के साथ नहीं, आप वो तो होनी चाहिए, मगर आपकी लॉयल्टी होती है आपके कंस्टिट्यूएंट्स के साथ, जिनसे आपने वादे किए कि आप उन्हें पानी देंगे साफ पीने का, जिन बहनों से आपने कहा कि हम आपके लिए यहाँ पर सोई मशीन के इदारे लगाएंगे, हम यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स लगाएंगे, स्कूल बनाएंगे, तो वो आपका हल्का आपकी जिम्मेदारी है। फिर आपने अपनी इंटरनल ताकत होती है, आपने जज्बा होता है कि आपको सर्व करना है अपने हल्के वालों को, इसलिए वो बहुत जरूरी है। So from education, good healthcare, from microfinancing, के खवातीन को इकोनॉमिकली एक वाइबल हिस्सा बनाया जाए हमारे माशरे और सोसाइटी का, टू पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इंशाल्लाह पाकिस्तान में इंसाफ में काम करेगी, आप सब लोग करेंगे। मैं इतनी मशहूर हूँ आप सब की, इतनी दूर से आप लोग आए, ये कोई जलसा नहीं था और सीरियस सब्जेक्ट था,
اور آپ لوگوں نے بڑے تحمل سے سنا. پلیز آپ والنٹیئرز بنیے. ہمارے کوآرڈینیٹرز ہیں, ہماری ایک ویب سائٹ ہے ارسلان یونس, اس کو مینیج کرتے ہیں جینڈر امپاورمنٹ کے نام سے. آپ اس کے اوپر اپنا نمبر دیجیے یا ہماری جو ٹیم ممبرز ہیں آپ یہاں پر اسے کانٹیکٹ کیجیے. انشاءاللہ پاکستان کے ہر صوبے میں یہ لے کے جائیں گے اور ابتدا اللہ نے چاہا ہے حاصل کریں گے. اور میں آپ سب لوگوں کا, اگر ہمارے پاس آپ کا نمبر ہوگا وہ ہم اپنے ڈیٹا میں ڈالیں گے. جو ہماری ایکٹیویٹی ہوگی ہم آپ کو اس کا انفارم کریں گے. ہم نے بہت ٹیکنیک کے اندر جانا ہے, ہمارے خیبر پختونخوا میں بہت چکر لگتے ہیں اور لگیں گے کیونکہ ہم نے یہ تمام چیزیں کرنی ہے. ہماری یہاں پر بہنیں اسلام آباد کے چیپٹر کی جو ہے انہوں نے اتنے بیوٹیفل ٹوائز اور کتابیں کے پیچھے سب ڈھنگ سے ارینج کیے اور اتنے سارے کارٹن جمائے جو کہ مس پرویز کا کو میں بتاؤں کہ ہم انشاءاللہ نفیسہ آپ یہ پلان بنائیے اور ہم لے کے وہاں جائیں گے اور ہم ایک ایک اسکول کو پک کریں گے. ہم نے بہت کتابیں, بہت ٹوائز اور ایجوکیشنل بکس, گاربیج نہیں, ایسی چیزیں نہیں جو پھینکنے والی ہو, نئے نئے چیزیں یہ سب آپ لوگ شاید سمجھے کہ کوئی ہم اپنے ہماری خواتین اپنے کورس کلین کر رہی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. کس نے کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا حسن بھائی کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے کرو. رحمت اللہ کی اسی نیت پہ کرو. تو انشاءاللہ ہم یہ سب کام کریں گے, ہم جائیں گے. آپ لوگ آلویز ویلکم ہیں, کبھی مت ڈریے کسی دہشت گردی سے, کسی چیز سے جس کا جہاں وقت مقرر رہنا آگے ہو سکتا ہے, ایک منٹ کا پیچھے ہو سکتا ہے. ایمان کر لیں تو چلے, ہم تو وزیرستان بھی اپنے بہادر لیڈر کے ساتھ لائے تھے. آپ سب چلیے, آپ سب کو دعوت ہے, ہم آپ کو انفارم رکھیں گے انشاءاللہ. اور مل جل کے اللہ نے چاہا ہم ریئلی نیا پاکستان کی طرف بڑھیں گے جو عمران خان کا ویژن ہے. میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہم سب کھڑے ہوتے ہیں اور پاکستان کے قومی ترانے کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ایشور حسین شادباں